One Mr. Good evening. Good evening, good evening. One Mr. Sasikumar wants to speak. Yes, Mr. Sasikumar, boliye. Yeah, good evening, sir. This is Shashi Kumar from Bangalore. So, the way it is a Nifty and Bank Nifty is going to what extent, and so I just want to have a view and discuss. That's it. Nifty and Bank Nifty. Yeah, You play or you don't play? I play. With how many lots? I do some 20-30 lots. So 20-30 would be 1000 Nifty. Yeah, You do daily or weekly or monthly or yearly? it's like daily. Daily. Yeah, How much brokerage and charges you pay? yeah, I pay. I do around 100 trades. And it is a intraday No, no. scalping kind of thing. Yeah. So how much charges you pay? Around 2000 something like that. 2000. So 60,000, no, 2000, matlab, 50,000 a month. Yeah, approximately of 40. Yeah, 40. From expiry days, I won't do any trade kind of thing. And how much net you make every month? Around 50 to 60,000 after all charges. Okay. So what do you want to discuss? Uh, just want to just be part of this and to understand the marketing dynamics. Nothing like See, according uh, to me, people who don't know anything yeah, play Nifty and Bank Nifty. yeah. You play stocks or you don't play stocks? I do play stocks also. Hmm. Uh, Well, in my case, I have 10,000 Nifty short, mhm, maybe 7 years running now, from 7,500. mhm, And I feel Nifty will touch 12,000 again. It's mhm, 9,000 points away at the moment, but I'm very sure it will come. So I'm a okay. long term player, not daily. How do you manage daily here? It doesn't exert any pressure on you. No, it is like I've been in market like 7 years. Initially, was struggling, but somehow I come to some logic, and it is working No, no. from many Working or years. Yeah. not working, that's a different story. But how do you manage the stress and the anxiety? No stress, sir. Initially, I used to take stress. Now it is completely stress free. Okay. Yeah. So I, I'm even for profit. I am not bothering. I even I have my stop loss, and yeah. So I'm not too much attached to that. oh, Restricted whichever it is. I can lose the affordable capital with that I'm playing, if you don't mind, how not more much than that. capital you deploy? So initially now I have around 10 lakhs. That's it. That entire thing I'm No, not no, no. like No, no, putting no, no. No, no. See, I mm, just asked you how much capital you employ now. 10 lakhs. Oh. But as far as I know, Mm. one lot of Nifty would take a margin of 1,80,000. So, It's not neither, not seller actually. ah, what? Hello? ઓપ્શન બાયર છે સર. Yeah, I'm an option buyer. Oh, then you don't belong here. Yeah. You Okay. will ruin your life sooner or later. Chaliye, I don't Okay. want to talk. I thought you are playing Nifty, so I was talking so much with you. If you are an option buyer, I wouldn't look at you also. That's the most bogus thing to do in life.
whether you gather the art of it or not, is the Mm-hmm. most hopeless thing to do. You are always in hope. Always, always, always. So, humble request, don't buy options, and by any chance, don't sell options. Mm-hmm. You will have to sell your house and whatnot. I Mm-hmm. I'm in this market since long, so I know what is Mm-hmm. what. Okay, I'll take it. Your point, sir. Thank Thank you, you. thank you. Friends, anybody wants to speak? Okay. Market at 21,000. This run. Okay, there is another gentleman. Well known Fernandez. Yes, well known. Yes, well known. Yeah, good evening, sir. Hmm. Good evening, Saman. So, I was just Good evening. Yeah, go on. Hello. You're not audible, Vernon. rather than the other state elections, it was as though Gujarat they had a landslide victory for BJP. No, what do you want to say, well Whether known? yeah, so the Adani port especially the volumes have increased 25%, but the stock price is up 50% in the last one and a month. This again seems like another pump and dump kind of situation, No, what do you want wherein to they get. say? So, just a caution to anybody who is looking at Adani and other group companies Hey, as an छोड़ो ना investment, यार. thinking Why that are you advising? For what? What credentials you have to advise people? no, not as an advice, more as a caution. Arey, but for what? Everybody is above 18, right? And everybody is, Yeah, does their own thing, yeah. If we say anything, nobody is going to listen to us. That's my correct. point. But at the same time, for new people in Arey, the market, please, yeah. these are very Hello, stop. hot You have companies. something specific to say. Specifically, that valuations are much ahead of Okay, fundamentals for that for that group. Basically, that's the bottom line. okay. Thank you. Yeah, there. Sir, good evening. This is Devi Singh here from Bangalore. Hmm. Just a comment. I just wanted to make a macro comment on the IT sector, right? Hello, hello. Yes. You have come here to give your opinion or to listen to me? No, I mean comment and then take your opinion. Okay. So, sir, Very I good. mean, kind of been associated with this IT industry for almost more than 2 decades. Hmm. And what I get confused now is that if I look at the IT sector specifically in India, which is dependent on some global markets, let's say the American and European. Um, I mean, it's going through a very difficult time. If we look at the IT companies, they are reducing their OPEX and CAPEX extensively, and they don't have any clear forward guidance for the next 3 quarters. There are some deal wins which are on the way, people say, but not getting materialized.
So the confusion that I have, or rather the opinion that I wanted to take, is that, I mean, why are people, so gung ho? I mean, IT could be a long term story, but in the short term, why are people so very positive about IT? Yeah, I will answer you in a different way. Sure. Jet Airways, a defunct company, is quoting at 65 rupees with a market cap of almost 1000 crores. So people are very bullish over here. Okay. So same way Tech Mahindra and all. People are buying just because they have money. You can't stop them. Okay. Yep. Thank you. Sure. Yeah, Modi. Moli, bolo. Last chance, Moli, bolo. वो मोली नहीं है, मोगली है सर, रहने दो। Moli, Moli. नहीं नहीं रुको रुको बोलने दो। गया। हाँ बोलो भाई। अमित चंदियोक बोलिए भाई, अनम्यूट कीजिए। लेफ्ट हैंड नीचे अनम्यूट का बटन है, बटन प्रेस कीजिए और बोलिए सर, यू आर नॉट ऑडिबल। Recently, we have seen the FIIs are buying lot in HDFC Bank. ऊपर 7,000 ऊपर के करोड़ की buying हुई है. So, do you think over a period we can expect at least a return of 30% for next 3 years at least? Like it should double from here. या आराम से। मैं तो बोलता हूँ 3 गुना हो जाएगा। It will have a market cap of 40 lakh crore. तुम भी क्या बात करता है यार। हाँ हो जाएगा भाई। और मजा करो। और कुछ? Why do you need validation from people? Just go and buy. Okay, sure. That's it. This market is the most euphoric market I have ever seen. Somebody does something and the stock is up 10%, 15%, 20% in a day, in 3-4 days. Never in my life I have seen this. Now, just now I saw TV that the market cap is $4.18 trillion. That's great. For GDP, last year was 276 trillion rupees, and you add 11% or 12%. So 305, 310, उससे ज्यादा अपना मार्केट कैप है, कभी नहीं हो सकता। It's not हेलो। हाँ yeah सर, यू आर नॉट ऑडिबल सर एक्चुअली। now I am audible. यस यस यस। I heard you. So GDP market cap has gone for a toss. FIIs are doing this, that, and as the previous speaker was saying, he also wants to buy. A copycat buying, selling will not take you anywhere. Follow somebody, have a mentor. Oh, we have a speaker. हाँ रंजन भाई बोलिए, आप रह गए थे, बोलिए 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 ना रंजन भाई। रंजन कुमार जी बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है शरद भाई? हाँ जी हाँ जी।
तो भाई मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पास ना एक कंपनी है जो एआई पे काम कर रही है, लेटेंट व्यू, तो उसके उस शेयर का क्या फ्यूचर है, बता सकते हैं कुछ? मेरे को नहीं मालूम भाई। ठीक है जी, थैंक यू। अरे आपके पास शेयर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे मालूम होना चाहिए। हाँ, हेलो, चले नहीं रहे સર તમે કમ્પ્લીટ કરી નાખો પછી લ્યો. अरे हाँ, लास्ट लो છું પછી। लेकिन क्या लोग है, क्या समझता नहीं है। See, what we lack in India is civic sense. ये लगता है मेरे कनेक्टिंग। हाँ, so our GDP is lesser than the market cap. No problem. Whatever is happening is so difficult for us to understand. But when I sit back and try and understand, this is pure harakiri and nothing else. Sooner or later, ball is going to, or we are sitting on a time bomb. Some event here and there will take the markets down. A classic case was sugar. Everybody is overbought. I am also overbought. I sold it off. But what a tremendous fall in this Bajaj Hindustan from 33 to 25. $8 gone. So I don't know. 25% of my wealth eroded in one stock. Similarly, we are at a tipping point. I don't look at charts, but when I when I see them in my mind, everything has a dandy up, and now it's bit down. So everything is going to go. See, what is a stock market? Where the discovery of the price happens in an efficient way. Over here, there is no price discovery. Say Tata Power, 290, 300, next day 330, और उसके आगे 275. So this is not a market. This is just a casino type thing. You should be wary of it. Book profits. I was trying to find some stocks to buy with this Bajaj Hindustan money. So I could find only U-back, but already I am invested. लूँ तो क्या लूँ? Then I diverted the money to commodities, long short options, straddle ये वो करके 10% रिटर्न मिलता है पर मंथ। अच्छा है। दूसरी बात है, ये लेफ्ट आउट फीलिंग में आना मत, ये भी ले लूँ वो। अच्छा, in trading my position is maybe in 4 stocks or 6 stocks, not more than that. What happens is, when you are sitting in the front of the screen, you want to buy this. It doesn't move for 15 minutes, so you feel jittery, and something else is moving up, so you sell this and buy that. That doesn't move for some time. You get jittery. You want to do that. You want to do that. This is what people do.
Stick to your core positions and play in that. Don't jump around. You will lose lot of money. In this bull market, the maximum loss that can occur is to the bulls, not to the bears. I hear a lot of people talking about bears butcher हो गया. अरे bears तो कभी का मर गया. बेयर का कोई जगह नहीं है इधर. The total outstanding position of stock futures is 285,000 crores. We started this series at 237,000 crores. So almost 50,000 crores worth of material has been added to the stock futures. Now, I am not including the options. If I tell you the option rates, you will fall down. My God, so expensive, so expensive. If I buy Tatacom, which is at 1700, and I buy 1800 call, it's 25 rupees. I don't know what will happen to this. So if you, and everything has gone haywire, SEBI should definitely stop this option activity. Daily expiry, क्या है casino है. And Nifty, I don't know. People say a lot of people are short. FIs कोई नहीं है अपने इंडियन सी. बस यही बोलना है और तो क्या बोलेंगे. आप ले समझ में. यस सर. आज सर आरबीआई का पॉलिसी आया तो it was an hawkish commentary which they said overall, and specifically on the liquidity part if you see sir, तो अभी जो बैलेंस शीट है that was around 28.6% in FY21. Total GDP if we estimated 300 trillion. तो 28.6 से अभी 21.6 पे आ गए हम. That much liquidity has been shrunk down by RBI. 21.6% of 300 trillion. So वैसे RBI is squeezing out liquidity in on the business part if you see. तो जितने जैसे पेटीएम का है स्मॉल टिकट पर्सनल लोन they were giving up to 50,000. They have said no, they will not be giving any loan up to 50,000, and the due diligence is also stricting. अभी strict हो गया है सब वहाँ पर. तो they are saying that we would not be giving loans to any other. यानी पहले तो क्या था कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन दे देते, इंडिविजुअल पर्सनल लोन दे देते, स्टूडेंट को लोन देते थे. That has been stopped if you see. तो अभी शॉर्ट टर्म में तो आई डोंट थिंक सो दिस लिक्विडिटी का यानी कोई है अभी ऑप्शन. लिक्विडिटी इज गेटिंग स्ट्रिंग्ड आउट. प्लस अभी आप देखोगे ना सर तो क्रेडिट कार्ड में जो ड्यूज थे डिलिक्वेंसीज अभी शो अप हो रही है ओवरऑल. आप कोई भी आदमी से पूछोगे वो इज देयर इन द फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम बजाज और SBI कार्ड. The delinquencies have shooten up like anything. So धीरे धीरे करके this will be a slow and steady poison which will be coming up in the system sir, and it's not a good sign. तो और सर पैसा घूम नहीं रहा है मार्केट में. एक वही इश्यू है, रोटेशन नहीं हो रहा है. जहां पर हो रहा है वहां पर यानी it is a big money which is rotating itself, but small vendors are getting shrinked out. उनके पास नहीं है सर लिक्विडिटी. और ये आरबीआई का जो अभी हुआ है इन लोगों के साथ यानी पेटीएम फिनटेक कंपनीज जो इजीली देती थी लोन 15,000 20,000 50,000 की, वहां पर थोड़ा क्रंच है सर. तो लेट्स सी क्या होता है सर. बस वही बोलना था सर. आज आरबीआई का स्टैंड भी हॉकिश था ओवरऑल. उन्होंने बोला कि वी विल टाइटन अप द सीट बेल्ट्स. प्लस अभी नेक्स्ट 6 months तक कुछ ऐसे
हाइक नहीं होने वाला है, बट रेट कट भी नहीं आएगा। इसलिए अभी बैंक्स के पास भी एक्स्ट्रा मनी होगा, क्योंकि लोन का स्ट्रिक्टनेस हो गया है, एफडीज में पैसा आ रहा है, तो दे आर फुल ऑफ, बैंक्स के पास पैसा है, मार्जिन स्क्वीज होगा बैंक्स का भी, शॉर्ट टर्म टू 6 months to 1 year, सर। नहीं, लेट्स सी। पर हाँ जब सर। से मैं मार्केट में हूँ, यस हर सर। साल 7-8 आरबीआई मीटिंग तो होता ही है। छोड़ना यार, क्या क्या नहीं जाने। उसका काम है आके बोलना, अपना काम है 5 मिनट सुन के बाजार को देखने का। बराबर है सर। वो तो बोलता रहेगा, होता रहेगा। ये इंडिया इज अ बिग कंट्री यार। आरबीआई क्या वो ऑफिशियली गवर्न करेगा ना, अनऑफिशियली कितना सब चलता है। या चिराग, यू डिक्लाइन? नहीं, वो आई थिंक देयर इज सम कनेक्शन इशू सर, मेरे को कनेक्टिंग दिख रहा है। नूब ट्रेडर, हाँ नूब ट्रेडर, बोलो भाई। सर आपने बोला कि हमारा मार्केट कैप हमारे जीडीपी से ऊपर आ गया है, बट यूएस का जीडीपी इज हाफ ऑफ देयर मार्केट कैप, so we still have a lot more to go, right? नहीं 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 नहीं, आप गलत फहमी में हो। यूएस में वर्ल्ड ओवर का हाँ, पैसा आता है। नहीं, पैसा नहीं, इक्विटी लिस्टेड है। ओके। फॉर एग्जांपल सीमेंस, ग्लेक्सो, सब उधर हाँ। लिस्टेड है, तो उसके लिए आपको वो ज्यादा दिखता है। आप नहीं मेरे स्पेसिफिकली आप हाँ, स्पेसिफिक तो नहीं, अभी नहीं, बट एप्पल, अगर एक मिनट सुनिए। ये अगर एप्पल यूएसए यहाँ पे लिस्टेड होता था तो अपना मार्केट कैप डबल हो जाता। हाँ, लेकिन वैसे नहीं देखते हैं ना, वो निकाल देते हैं आप। और भाई साहब, एक बात बोलता हूँ, व्हाई डू यू लुक एट यूएसए? because that is the topmost country. हाँ, so why do we compare ourselves with topmost? Because I do believe we are also the topmost country. That is, sorry, but yeah, I do believe that once we will reach there. I, yeah, I'm bullish. And I believe that we will reach there one day. I'm not sure when, but yeah. No, we'll reach in 6 months only. नहीं sir, 6 नहीं, months नहीं, अभी तो 200 2027, 300 पता नहीं कितना साल लगेगा। 2027, our economy will be 30 trillion, and by 2035 it will be 200 trillion, and by 2040 we will be 500 trillion come अरे country। अगर ऐसा होगा तो आपके मुंह में घी से कैसे? अरे आपको मालूम है वर्ल्ड का जीडीपी कितना है? वो छोड़िए ना। नहीं सर, लोग, नहीं देखिए, एक होता है ओपिनियन होता है, और एक होता है बिलीफ होता है। बिलीफ इज बेस्ड ऑन अपने इमोशंस, ओपिनियन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डाटा। facts, yeah. बस। कितने साल के हो भाई? I am 32 sir. हाँ, तो बहुत टाइम है तेरे पास। नहीं, मेरे को इतना छीना नहीं है। जब इंडिया 30 ट्रिलियन अगर कभी होगा, अगर कभी होगा, वो टाइम तक जी लूं, उतना बहुत है। नहीं, ये अभी 3 साल में हो जाएगा 30 trillion। नहीं होना। And one more thing which this golden sir had said आप that एक मिनट, आप यूएस गए हो क्या कभी? नहीं, बट मेरे बहुत फ्रेंड्स रहते हैं वहाँ। नहीं, आप गए हो क्या? नहीं, मैं इंडिया से बाहर कहीं नहीं गया सर। ठीक है।
हाँ बोलिए। एक मिनट ना, यूएस जो से पहले ना एक बार चाइना का चक्कर मार के आना, ठीक है? ऑनेस्टेड में, ओके यूएस का वीजा वैसे भी 3 साल लगता है अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है ना? आप अभी अपॉइंटमेंट मांगेंगे यूएस वीजा में तो 3 साल लगता है अपॉइंटमेंट मिलने के लिए, फिर उसके बाद वीजा मिले ना मिले वो सेपरेट मैटर है। तो इतना टाइम नहीं लगता। मेरा एक दोस्त, उसने अभी वीजा अप्लाई किया था यार, एंड ही इज गोइंग देयर। he may have already have an old visa, then you will get a quick appointment. That's how I got, ओके right? But आप अभी यूएस वीजा एम्बेसी की वेबसाइट में जाके देखिए, the appointment 500 days, 600 days, depending, not just India, all over the world. Anyway, ओके तो वो 600 दिन तो जब हैं नहीं पर चिराग, if he has a vision, sitting in his armchair to dream, so what's wrong in it? there's no this thing. I'm just saying that मतलब all I'm saying is that there are other benchmarks also. That's all I'm trying to say. Actually, what happens is most Indians who've never had any view outside of movies or any English media reference, तो उनको सबको लगता है यूएस है अभी, obviously it's a big country, has been wealthy for almost more than 2 centuries now, so that's a natural benchmark. So सर I'm really sorry, but the thing is, there is an historical cycle that says if you are dominating the world for more than 200 years, then you won't be dominating it more than like 300 years. okay, If you go back to history, yeah. fair enough. So I'm not I'm telling. just buttressing I'm not, that point. That's it. I'm buttressing your point only. no, I'm not telling that US will be the top of the world and we should compare ourselves to the US. But I was just comparing that if our GDP is, so if our market cap is more than our GDP, then US market cap is twice of their GDP. And Sarat sir explained it, like the entire world money comes to the US market. So you can't compare our market to the US market. That I am had I understood, but I just believe that one day we will reach at that position that अरे the अभी world अभी money will तू come to. 4 दिन रुकना, अपने हो जाएंगे 30 दिन, डोंट वरी। होगा And 100% होगा. होगा होगा no, 100%। Are you a also, parent? Are you a parent? Noob? Are you a parent? uh, no, I'm 32 years old. I'm not married yet. Acha. So I'm a parent, and I believe that my son will do wonders in the world. Okay, and I have every right to believe it. Everyone believes that. Exactly. Thank you. That's all I have to say. Yeah. No, but one more thing which Colin I has said, like regarding the RBI thing, RBI is the most respected central bankers in the world. If you read any research paper anywhere in the world, they are the most. Even when the Fed was tightening, we were not tightening, and now the Fed started losing, like being on the dovish side, but we are sitting on the sidelines. So the one thing that is I totally believe is like our central bank structure. Yeah, right now I believe they are in like in some kind of political situation. Like when the government says something, then they have to do that. But still, I do believe that our central bankers are the best in the world. Uh, and not only me, but if you go to any research paper, we have always looked far beyond the Fed, far beyond the ECB, far beyond the Japanese central banks. So we looked, our economists, they looked ahead like so far into the future that none other bankers have. That's why we survived 2008. That's how we survived like 2020 and maybe the next crisis whenever it comes. And I do believe that even when that situation comes, yeah, our central bankers stay in the same position and we will survive that. Yeah, absolutely true. My wife, who is 62, just won the Miss World, okay? Okay. Okay. चलिए बहुत आपका हो गया,
Okay, yeah, I shut down. Thank you. Yeah. आओ बोलिए भाई. महादेव भाई जलके अनम्यूट कीजिए सर. चलो नहीं बोलेगा. हाँ बोलिए सर, हेलो. बोलिए. हाँ बोलिए हाँ सर. हाँ समर्थ भाई. हाँ जी सर. समर्थ भाई नमस्कार. नमस्कार सर जी नमस्कार. हाँ सर सर नमस्कार. सर मुझे पता नहीं हाउ टू आया आज. मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ. एमबीबीएस और एमडी किया है. म्युनिसिपैलिटी में जॉब करता हूँ सर. और मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता हूँ सर. थोड़ा म्यूचुअल फंड से करता हूँ और थोड़ा बहुत स्टॉक. ज्यादा नहीं करता लेकिन थोड़ा बहुत करता हूँ. तो मुझे सिर्फ आपका ऐसे गाइडेंस ही चाहिए था और कुछ पूछना नहीं था सर. आई एम सॉरी. वो आपके जो ये आते हैं ना अपनी जो टॉकिंग होती है उसमें मुझे थोड़ा बहुत उससे थोड़ा बहुत मिल जाता है सर. एंड थैंक यू फॉर इट. थैंक यू सर. अभी कुछ पूछना है क्या सर? नहीं सर, नहीं सर. आप जो बता दे बस उतना ही सुनता हूँ सर. थैंक यू सो मच. ओके सर. या Oh gosh. This expansion in open interest 2019 it went down to 60. No, 60 was including, say, okay, 60,000. Now we are at 285,000. Khuda na khasta, because see, this position is stagnant. Market goes up or down. First 10 days, it goes up by 50,000 crores. फिर अनवाइंड होता है, फिर वापस शुरू होता है. इसमें कितना पैसा लगता है किसी को अंदाजा नहीं है. स्टॉक फ्यूचर का आउटस्टैंडिंग अगर मैं बोलूं तो नहीं, एक बात बोल दो. स्टॉक फ्यूचर्स 188 आइटम लिस्टेड है, 188 और 189. उसमें से आप लोग कितनी आइटम में करते हो? हार्डली मे बी 10, 20, 30. अभी कौन आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, फिर मैक्स फाइनेंशियल, फिर एसबीआई कार्ड. अनवांटेड स्क्रिप्ट्स आर इन फ्यूचर्स. Nobody plays, but very surprisingly, the outstanding is 1 crore, 2 crore, 3 crores. I don't know where it all comes from. अभी मैं देख रहा था एसबीआई कार्ड 1 crore 70 lakhs. तो कौन इतना ले लेता है पता नहीं हो चलता. Like that, if you analyze many items, there is an outstanding, but who is owning that? Dabur, Marico, ये वो फलाना ठिकाना. My suggestion to SEBI is please introduce all this chinku pingu stocks in B group into futures. तो मजा आएगा. ये अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तुम बेचेगा क्या मिलेगा, तुम ले लेगा क्या मिलेगा, एसबीआई लाइफ क्या क्या, मतलब कोई nobody touches also. This is the main reason people shift to options in Nifty, either in buying or selling, because there is no other avenue and the volumes are hardly there. So,
and I forget. Sachin, I have invited you. You tell us, what do you feel about the market? सचिन भाई, हाँ बोलना सचिन. गुड इवनिंग सचिन गुड भाई, इवनिंग शरद सर. गुड इवनिंग समर गुड भाई. इवनिंग. कैसे हैं सर? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया बढ़िया. मार्केट सर 21,077 एक लेवल है जो मेरे हिसाब से एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो अपना रेंज था ये 20,222 से लेके 18,837 का जो फॉल आया था उसका 161% एक्सटेंशन बनता है ये फिबोनाची का, और 20,850 पे अभी 3 दिन से होल्ड कर रहा है. तो 20,850 के नीचे ही थोड़ा मंदी लगता है, और तब तक ये 200-300 पॉइंट की रेंज में घूम थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं यहाँ पे. यही व्यू है सर अभी तो. 20,850 के नीचे सोचेंगे मंदी का. नहीं, ये निफ्टी में तो बात ऐसा है ना कि सितंबर में चेंजेस आते हैं यस सर. और हल्का स्टॉक निकाल देते हैं और अच्छा वाला स्टॉक डाल देते हैं. यस सर. तो निफ्टी में डाउन साइड तो ऐसे लगता नहीं है. हम्म. और एक और लेकिन नेचुरली हो जाएगा एक दिन. और एक और चीज सर, मैं ऐसे ही मतलब जैसे 2019 में भी इलेक्शन ट्रेड किया था, तो ऐसे ही मैं जाके देख रहा था कि 2018 में क्या हुआ था मार्केट में. तो बाय कुड बी कोइंसिडेंस कि 26 अक्टूबर 2018 को निफ्टी ने लो बनाया 10,004 का, और इस साल भी 26 अक्टूबर 2023 को निफ्टी ने लो बनाया 18,837 का. तो सेम डेट 5 years बैक निफ्टी मेड लो. तो वहां से फिर मैंने देखा कि कितना ऊपर गया था वो 10,000 से. तो वो मोटा मोटी 11,100 तक वहां से बाउंस आया था, which was around 11%. So if I add 11% to this low of 26th October 2023, that comes out to be 20,910. So we are close to it, but ऊपर जा रहे हैं तो there is, we cannot say कि where it will stop, but this is the like from the previous what has happened, I am sharing based on that. बराबर है. बोलिए. सचिन, यू वेट. द फाइनेंस स्नाइपर. अरे वाह भाई वाह. बोलिए. हाय सर जी, माय नेम इज अक्षत. मेरी आपसे पहले भी बात हुई है. हाँ. राइट. तो मेरा एक सवाल है और एक मेरा व्यू है निफ्टी के ऊपर. तो सवाल मेरा ये है कि नवंबर लास्ट वीक में देयर वाज दिस न्यूज़ दैट इंडिया विल सी अबाउट $3.5 billion ऑफ इनफ्लो फ्रॉम दिस यूएस पेंशन फंड जो इंडेक्स स्विच हो रहा है, बेंचमार्क. तो माय क्वेश्चन हियर इज कि आपका दो चीजें होती हैं. एक है कि मैं एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ. दैट इज वन.
Second is, I have a pension fund जिसका benchmark today, let's say, is Nifty 50, and I want to change my benchmark to Nifty 200. So if I change the benchmark, how will my investment policy change? It will not change, right? I mean, मैं तो सिर्फ benchmark को change कर रहा हूँ. So this entire thing that $3.6 billion will inflow just because US federal government pension fund has decided to switch the benchmark index for their international funds. उसकी चक्कर में इंडिया में $3.5 billion का इन्फ्लो होगा. I think it's a wrong news. They are not changing their investment policy, but they are only changing the benchmark against which they will judge their index funds, against their pension funds. So that is one view that I have here. उसके चक्कर में and elections के चक्कर में आपका market मेरे हिसाब से बढ़ गया है. Secondly, Nifty पे I have a certain view. If you see the 2008 low, which was around 2250 levels, and if you extend that rally to January or February 2020 high, which is 12,430 levels, उसका आप डबल कर दीजिए तो वो 22,508 या 22,600 आता है. So I think that is where the extension is going. So first view, मतलब उसमें मेरा question था that how does that affect, and second was the view on the Nifty. That's it. नहीं मतलब यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट कि ये न्यूज गलत है, बराबर है. नहीं, I am making a statement that Indian media houses are perceiving it wrong. आप सिर्फ एक benchmark ही तो change कर रहे हैं. You're not changing your investment. अरे भाई साहब, in my heydays I used to run the आपड़े headlines of lot of newspapers. वो छोड़ो ना यार, एक 10 रुपए का पेपर में आता है, उसके ऊपर अपने क्यों डिस्कस करे यार. नहीं, बट उसके बेसिस भी तो सारे लोग कह रहे हैं कि वो अरे वो कि मैं ना नहीं बोला आपको. 3,000 करोड़ रुपए इन्फ्लो होगा, 5,000 करोड़ रुपए इन्फ्लो होगा. तो अरे पर मैं क्या बोलता हूँ भाई साहब, यू कैन से वॉट एवर यू वांट, समत कैन से वॉट एवर he wants, but the fact of the matter is it's a news which is planted for sure. तो उसपे क्या डिस्कस करेंगे, बोगस है, करेक्ट. फालतू है. हाँ, तो सी माय ओनली व्यू हियर इज कि इस महीने एक सेंटिमेंट बनाया जा रहा है कि वो पैसा इन्फ्लो आएगा. तो माय क्वेश्चन हियर इज दैट विल दैट मनी रियली कम इन, बिकॉज जस्ट बिकॉज यू आर चेंजिंग द बेंचमार्क. अरे भाई अक्षय, जब मैं बोलता हूँ न्यूज ही गलत है, छोड़ो ना यार. करेक्ट. There is no point in discussing fabricated stories over here. Let's discuss something worthwhile. और निफ्टी 22,500 क्यों और 50,500 हो जाएगा, बोलने में क्या जाता है दोस्त. मैं तो बस टेक्निकली एक रीजनिंग दे रहा हूँ कि जो 2008 का लो और 2020 का जो हाई है उसका डबल एक्सटेंशन इज नाउ रीचिंग 22,500 600 का जो लेवल है उसका डबल एक्सटेंशन है. बेसिकली 12 साल में जितनी मार्केट आपकी जितने पॉइंट्स में बढ़ी है उतनी आपने 3 या 4 साल में बढ़ा दी है. तो दैट इज द डबल एक्सटेंशन वेयर प्रोबब्ली अ स्टॉपेज कैन बी फेल्ट. ठीक है यार, ये निफ्टी के बारे में बात करना फिजूल है. इट्स सो फिकल, कोई मतलब ही नहीं है यार. और जिसको कुछ नहीं आता है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी और ऑप्शंस खेलता है. हाँ, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनकी बात अलग है, बट आम जनता तो मैंने बहुत देखा है. मैं नहीं खेलता बैंक निफ्टी निफ्टी. होने देना, 50,000 होने दे, 2,000 होने दे, कुछ भी होने दे, अपने को क्या फर्क पड़ता. Stocks make money, not indices. If you want to be a millionaire, billionaire, zillionaire, whatever, you will have to play stocks, buy stocks. Short selling in India
You require huge sums of money to withstand this. Because anytime 5-6% move is there without any rhyme or reason. So if you don't have that much muscle power, don't play. If you have 10 legs, play 2 lots only. Then you will be a winner. But in short selling, as I always say, is an art. Don't. Just because बढ़ गया बेचो मत, just घट गया लेओ मत, अब मर जाओगे किसी दिन. मुझे पूछे बिना बड़ा क्यों टाक बेच. अरे मत कर यार. अपना कंपनी वो थोड़ी अगले का कंपनी है, छोड़ो. नहीं बोले वेल ईगल्स डेयर, मारो. So short selling, please avoid. Most of you, I can say with guarantee, don't know the method to uh, go short. जब ऑप्शन बेचना है तब आप फ्यूचर बेचोगे, जब ऑप्शन या whatever, like उल्टा ही होगा. तो stay away from short selling in this market. Don't waste your money. By shorting you are wasting your money. Don't. You will get ample of chance. हाँ, ये लोग मेरे को क्या क्या लिखता है, बेवड़ा है, पियला है, ड्रंकर्ड है, फिर वो सब गाली देते हैं, BSD के ना, MSD के ना, सब मेरे को समझ में नहीं आता है. तुमको नाड़ा बांधने को नहीं आता है पटलून में या अंडरवेयर में, और तुम हमको बोलता है ये सब क्या है, क्या मिलता है तुमको मिलने. मेरा जो व्यू है, 6 साल 10 साल रखता हूँ सौदा, और तुम 3 मिनट वाला है, तो कहाँ से मेल जोल होएगा. ये अभी निफ्टी बढ़ता है, मैं क्या करूँ, बढ़ता है तो उसका धंधा है निफ्टी का बढ़ने का. I'll wait. So please have some civility. वो कोई लिखा 12,000, मैं बोला ओके. फिर कोई लिखा 12,000 into 2, मैं बोला ओके. अरे पर हम इतना स्टॉक के बारे में बताया, उसका बोलना सब 10 गुना 20 गुना हो गया, वो नहीं देखने का. एक 12,000 ही दिखता है. People are so fucking stupid. I don't know. It doesn't bother me now. But see the mentality. I would appreciate anyone who has something in him. That's how I increase my knowledge. I increase my knowledge by appreciating other people and asking them to talk. He is Sachin Bhai. Though I don't play Nifty, but I understand what he's saying. And I learn from him. And another thing is, you are important as much I think you are important. If I think you are not important, you are not important. If I think you are important, you are very important. So this is how the world works. And stock market, don't ever think that I know everything. After 45, 46 years also, I proclaim that I know only 30% of the things. And nobody in this world can know 100%. Maybe 40, maybe 50. Beyond that, no. Because this is a random market. In a parenthesis, what will happen the next moment, nobody knows. राइट. अरे सर, एक स्टॉक का मुझे व्यू पूछना था. नहीं, तू रुक जा भाई. स्टॉक का मैं
इज इट मोर इम्पोर्टेंट? तो मैं ले लूं तेरा सवाल। नहीं, मोर इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट लेस इम्पोर्टेंट देन व्हाटएवर यू आर सेइंग ऑब्वियसली। बट एक चलिए आप बोलिए। नहीं बोली। कैस्ट्रॉल का नहीं, मैंने अभी बोला कि यहाँ पे ना सिविक सेंस नहीं है लोगों में। अब बोलिए। और बोलिए ना भाई, खत्म करो ना, चलो ना। कैस्ट्रॉल का पूछ रहा था, कैस्ट्रॉल का। हाँ, और 10 साल में 2000 का वो होगा। चलो, अच्छा स्टॉक है। अब 15,000 करोड़ मार्केट कैप है, अच्छा डिविडेंड प्ले है, अच्छा प्रॉफिट है। बोलिए। हाँ, मैं चालू करूँ अक्षत भाई? हाँ जी, सॉरी, बोलिए। So where was I? समझ याद है क्या मैं बोल रहा था कि वो तू भी भूल गया? सर वो समवेयर एल्स, मेरे को भी नहीं पता। अभिषेक, डू यू रिमेम्बर? चिराग? आप निफ्टी का बोल रहे थे, तब आप बोल रहे थे सचिन जी को पता रहता है क्या कर रहे हैं, आप उनसे लर्न कर रहे हैं। आई थिंक तब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। अच्छा, तू भी डिस्टर्ब था। अभिषेक, आप सुने? यस सर। सर वही बोल रहे थे सर, निफ्टी का ही बोल रहे थे, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट गुड शेयर्स। Okay, चलिए, I have lost it. So the point is, nobody knows what's going to happen. सब हवा में तीर मारते हैं, अपने भी तीर मारते हैं. But only difference is, I have lot of data in the stocks I play. When you play the futures market, वो क्या करता है किसी को कुछ मालूम नहीं है, क्यों करता है मालूम नहीं है, कैपिटल कितना, मार्केट कैप कितना, फ्री फ्लोट कितना, किसी को कुछ मालूम नहीं। ये भाव से खेलते बलरामपुर चीनी। आई एम शॉर्ट, 9 महीना हो गया, 320 में बेचा था। रखेगा उसको। ये शुगर सेक्टर का जो है ना, वो सब कंपनियां जो भी इंडिया में लिस्टेड है ना, उसका टोटल मारेगा मार्केट कैप का 1 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं है। और अपना मार्केट कैप है 340 ट्रिलियन। तो उसमें शुगर का बात नहीं करने का। अच्छा लगे ले लो, बुरा लगे बेच दो। और एक बात है, जिंदगी में अगर सुखी रहना है, फ्यूचर्स में रोल ओवर मत करना। मतलब आप प्रॉफिट में हो तो रोल ओवर करो, लॉस में नहीं करना। 1-2 बार आप जीत जाओगे, लेकिन जब फंसोगे ना, इट्स अ कैंसर। नेवर एवर रोल ओवर योर पोजीशन। सी, take your losses, small losses. My success rate is 13%, and 87% times I am wrong. But I make much more money in that 13%. The point I'm trying to make is, please, suppose you bought something today, like whatever went down. Okay, say Tata Chemical. At one point of time, it was down 30 rupees, then 15 rupees. Now, if you would have brought home that position, your whole weekend is screwed up. Okay? You will fight with your wife, you will argue with your children, और खाना ठीक से नहीं खाओगे। फिर मंडे को जाके 3:30 के 2 मिनट पहले आप बेच दोगे। तो पहले ही बेच देता तो फ्राइडे को ही
You understand what I'm saying? Please. This is a futures market. ये कोई डिलीवरी वाला सौदा नहीं है. Don't think you if you own say Century, नहीं वो फ्यूचर में नहीं है. Say Petronet, तो you become owner of Petronet. अरे नहीं यार, फ्यूचर में कुछ नहीं होता है. You are a gambler who's playing on the underlying. तो फ्यूचर्स मार्केट पे ज्यादा दिल नहीं रखने का. जो भी है हाथ धो के निकल जाने का. हाँ व्यू है. जैसे केबल कंपनी है, एक 1.25 महीना हो गया चालू रखा है. कॉल भेजेगा, पुट भेजेगा, ये करेगा, चलेगा 1 2 3. आपको एक मजे की बात है, फ्यूचर्स जो मैं बोलता हूँ कि इज अ टूल टू गो शॉर्ट. आप लोग नहीं समझते हो, नहीं मानते हो, ठीक है, इट्स योर फ्यूनरल. सत्यम, मैंने 6 साल रोल किया शॉर्ट अपना, 6 साल. और जिस दिन वो कन्फेशन किया टीवी पे, क्या ये व्हाटएवर कि फ्रॉड किया नहीं, फिक्स डिपॉजिट का सर. हाँ वो जो भी था, तो हो गया, इतना पैसा आया. फिर इंक्वायरी बैठा, तो सेबी वाला मेरे को पकड़ के बुलाया, बोले आ जाओ. मैं बोला चलो. तो हम चले गए. बोले इतना पैसा आया तुमको, तुमको पहले से मालूम था, तो तुम इतना सारा बेचा क्यों, कैसे कि वो. मैं बोला भाई धीरे, मेरे को तो कब से मालूम है ये चोर है, तब से माथे मारा. बोला हाँ देखा, यू हैव सोल्ड ऑन इनसाइड इन्फॉर्मेशन. अरे मैं बोला 6 साल पहले बेचा था. तो वो शॉक्ड. तो फिर वो बोला अभी ऐसा कुछ आएगा तो मेरे को भी बताना. मैं बोला ठीक है. तो कहने का मतलब है कि जैसा आप इन्वेस्टमेंट में पेशेंस रखते हो ना, शॉर्ट सेलिंग में पेशेंस का जरूरत बहुत है. वल्चर इज अ पेशेंट बर्ड. अरे बढ़ गया काटो. अरे 50 का 52 हुआ. अरे एज इफ की दुनिया लुट गई तेरी. यार होने देना, क्या फर्क पड़ता है, 50 का 100 होने दे. बट 50 में जब मैं बेचता हूँ तब 60 का कॉल भी लेके रखता हूँ. ऐसा नहीं कि नहीं लेता हूँ. एनीवे, अनदर ऑब्जर्वेशन इज, ये जो रिगिंग हो रहा है ना स्टॉक्स का, इट्स अनबिलीवेबल, अनवांटेड. वो जिसका मार्केट कैप 4-5 हजार करोड़ है उसको 10,000 करना है. वो जिसका 50,000 है उसको 1 लाख करना है. तो ये बहुत यार सब फनी फनी. और हाँ, एक क्या होता है, सितंबर का क्वार्टर का रिजल्ट 15 नवंबर तक आ जाता है, बाद में नहीं आता है कोई रिजल्ट. तब से तेजी चालू. ये तेजी है, चलेगा जनवरी 4-5 तारीख तक. फिर रिजल्ट आने चालू होंगे और 15 फरवरी तक फिर मंदी रहेगा. तब फिर तेजी का दौर. अभी ये यूपीएल का रिजल्ट आया, 530 में मैंने लिया या बेचा, वो जो भी है, आज 590 या 85 का भाव है. क्या है, वाई आर यू बाइंग जंक. सस्ता मिलता है ले लो. वो एक हमारा दोस्त है, पूछता है, कल मैंने उससे बात किया था, बोले लॉरेंस लैब. तो people buy any junk, यार, I don't know why.
So if you are a fundamental player, play with fundamentals. If you are a technical player, I suggest don't play only. Technicals can be very misleading. Why I don't look at charts? Why I don't look at वो सब क्या बोलते हैं कैंडल स्टिक एंड ऑल? अरे पागल बनने का रास्ता है वो। जो आप देखता है वो पूरी दुनिया देखती है, तो हाउ डू यू हैव एन एज ओवर? एक्सप्लेन। हाँ सचिन। सर उसमें क्या है कि पूरी दुनिया में पहले तो दो कैटेगरी के लोग हैं, जो स्मार्ट मनी है, एक डम्प मनी है। तो मैं देखता हूँ कि जब भी एक्सट्रीम रीडिंग होता है, लाइक इफ द इंडेक्स हैज क्लोज्ड एक्सट्रीम बुलिश, तो जितना रिटेल है वो भर भर के शॉर्ट करके जाएगा। क्यों? बिकॉज उसने देखा कि ये 100 वाला पुट था, ये अभी 40 या 30 रुपए में मिल रहा है, तो इसको ले लेते हैं। सो अपना जो डेली ये डेटा पब्लिश होता है पोजीशन का, ओपन इंटरेस्ट का, सो आई यूजली सी द रिटेलर इज ऑपोजिट। मतलब अगर नीचे गिर रहा है तो उसे कॉल बाय करनी है, ऊपर जा रहा है तो उसको पुट बाय करनी है। सो most of the people, although it is uh, clearly evident कि what the chart is going to do, but people, due to I don't know what reason, they are not able to take the right trade. They नो, want to माय place क्वेश्चन contract. वाज सचिन, हाँ जी सर। माय क्वेश्चन वाज अबाउट द चार्ट्स। हाँ जी सर, चार्ट में चार्ट ही बोल रहा हूँ। चार्ट में अगर मतलब बाय सिग्नल आया है, सो लाइक इट हैज क्रॉस द रेजिस्टेंस, क्लोज्ड अबव इट। जैसे आप यही एग्जांपल ले लो, 19,860 50-60 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर 19,900 के ऊपर क्लोज आया था, तो वहां पे चार्ट में तो बाय है, बट पीपल आर टेकिंग रिटेलर्स आर टेकिंग अ नहीं नहीं, शॉर्ट। डिटेल का बात नहीं। मैं क्या बोलता हूँ कि जो ये आपको चार्ट में दिखता है जी सर। वो सबको दिखता है ना। बिल्कुल सर। सो व्हाट इज योर एज? Sir, edge is there can be a fake breakouts also on the chart. So the edge comes with the time. Like if you keep on seeing that for a longer period, अब उसी चार्ट को देख के लोग मंदी कर रहे हैं, उसी चार्ट को देख के तेजी कर रहे हैं। तो चार्ट तो सर वही है, edge is how you see it. That is the edge. या ट्रू। हाँ बोलिए, आप रेमन भाई बोलिए। हेमंत भाई बोलिए। हेमंत सेठ। राहुल भाई बोलिए भाई। गुड इवनिंग सर। सर बजाज हिंदुस्तान का पूछना था अभी सर, तो क्या करना है? रिव्यू। भेज दो भेज दो। ओके, थैंक यू। तो वेस्ट लाइफ में कर ले सर इन्वेस्टमेंट उसका? वो नहीं बताइए, आपको जो ठीक लगे करो। नहीं यार, सिर्फ आप बजाज हिंदुस्तान का पूछा ना, तो हमको लगता है कि अभी उसका फ्यूचर 1-1.5 साल के लिए रुक गया। ओके सर। या बोलिए। नीरव पटेल। हाँ नीरव भाई बोलो। आगे से आवाज नहीं आवाज નથી આવતો।
अरे खाવાનું ખાઓ ને નીરવભાઈ. शर्मा आर. नमस्कार सर जी. हाँ जी सर. બોલો. सर हाँ सर मतलब बहुत बढ़िया लगता है मुझे आपसे बात करके. कई बार मैसेज में आए हैं आपके. तो आज अपने भी टेक्निकल सभी देखते हैं, तो चार्ट सभी देखते हैं, तो सभी को फिर वो कैसे कामयाब होगा. तो मैं तो सर यही कहूँगा कि चार्ट मतलब मैं भी देखता हूँ, मैं 2-2.5 साल से सीख रहा हूँ, तो मुझे तो सही लगा. हाँ, इसमें मैंने ऐड वॉल्यूम जरूर ऐड किया है, जो वॉल्यूम, प्राइस और टाइम. बेसिकली ईएमआई भी ऐड देखा मैंने, वो सारे काम करते हैं सर. पर हाँ, 6-6 महीने भी लगते हैं मुझे. मे भी आप करेंगे भी, हाँ सभी देखते हैं, तो सब पेशेंस नहीं है सभी में. तो 6 महीने का पेशेंस भी है. मैं कोई स्टॉक है तो मैं 6 महीने बाद जाके लेता हूँ, अभी नहीं लेता. तो भी पेशेंस रखना पड़ता है. वो पेशेंस मेरे सभी नहीं है, इसीलिए चार्ट सभी के लिए काम नहीं करते हैं. तो मैं 6-6 महीने वेट करता हूँ स्टॉक लेने की. तो वो भी है. प्लस मैंने अभी ये फंडामेंटल शुरू कर दिया. वो उसमें अर्निंग जो है अब देखता हूँ बढ़ रही है, तो थोड़ा सा ऐड करता हूँ. वो ज़्यादा नहीं आते मुझे, पर टेक्निकल सा काम करता है अगर पेशेंस से खेला जाए तो. पेशेंस से गेम है. धन्यवाद सर. नहीं, एक बात ध्यान रखना लेकिन पेशेंस में पेशेंट मत बन जाना. प्लीज बोल. Technicals work with stop loss, please, for whoever हाँ is. सर, हाँ, बिल्कुल ठीक है सर. वो 200 डेमा के ऊपर मेरा है, 200 डेमा के नीचे मार्केट का है सर. ये मैंने सोचा हुआ है. अरे शर्मा जी, फंडामेंटल्स तो आप देखना ही सही रखना. टेक्निकल्स में ब्रेकआउट दिखता है, वहां पर ऑपरेटिंग मार्जिन सब माइनस में होता है. कोई भी लेवल से आप देखोगे तो अब रिजल्ट में माइनस सब होता है. लॉस मेकिंग यूनिट है, वहां पर भी ब्रेकआउट आ रहा है. संभल के काम करना. हाँ सर, मैं ब्रेकआउट नहीं खेलता सर. मैं हमेशा पुल बैक खेलता हूँ सर. मैं आप ब्रेकआउट कभी फुल नहीं बैक, खेला सर. वह अरे फुल बैक भाई, हो या ब्रेकआउट हो यार, अरे भाई सभी. समझ खेल. वो एक्सपर्ट आदमी है, तो काहे को सिखाता उसको. नहीं ठीक है सर. सर एक्सपर्ट में कोई प्रोडक्ट तो होता नहीं. हाँ, सीख सीख के होता है. मतलब मुझे सर काम कर रहा है बस. सब मेरा 50-60% तो काम करता है सर ये. और लॉसेज मैं छोटे रखता हूँ आपकी तरह, और बिजनेस बड़े हैं मेरे पास. मेरे पास अभी 8 स्टॉक भी हैं जो 200 से नीचे आए नहीं कभी. वो मैंने रखे हुए हैं सारे. हाँ, पिरामिड जरूर करता हूँ मैं ऊपर आगे जाते हुए. पुल बैक्स पे ओनली. मैं ब्रेकआउट कभी नहीं खेलता, और ये काम कर रहा है सर. बस यही कहूँ. धन्यवाद. थैंक यू. शांतनु जी बोलिए. हाय सर, गुड आफ्टरनून. सो मुझे पूछना था, एक बिहेवियरल बायस का क्वेश्चन था. मतलब मेरे हिसाब मतलब मेरे लिए एटलीस्ट कि समझो एखादा कंपनी का जो है वो फाइनेंशियल ठीक ठाक मतलब नहीं है इतना ओके, बट मैनेजमेंट इज़ वेरी ओके, ड्यू टू विच क्या होता है कि ऑन अ वेरी यूजुअल केसेस कैश कन्वर्जन साइकिल्स बहुत लंबे चलते हैं. फॉर एग्जांपल मधुकॉन प्रोजेक्ट्स करके है, तो सर उसमें बाय. व्हाट इज योर क्वेश्चन. सर क्वेश्चन मोटा मोटी यही है कि मधुकॉन जो है सर, उसका रिवाइवल आपको लगता है क्या, मतलब ठीक होगा? जैसे कि मतलब पटेल इंजीनियरिंग का हुआ कि डेट था तो फिर वो क्लियर करके वो भी चल गया, तो उस हिसाब से आपसे पूछना था कि मतलब मधुकॉन कैसा लगता है सर? अब पूछिए, बताता हूँ प्रमोटर. अरे सर वैसा नहीं पूछा मैं. तो कैसा मेरे को मालूम रहेगा मधुकन. अब 5,000 कंपनी है यहाँ पे इंडिया में, तो कैसा मालूम रहेगा एक एक कंपनी का. राइट सर. नहीं सर, अभी मतलब अभी मैंने देखा कि आपके पास बोले कि डाटा है मेरे पास, तो अच्छा सर मुझे लगा आपका इतना वाइड एक्सपीरियंस में कभी आपने नाम या कुछ सुना रहेगा, इसलिए सर आपसे क्वेश्चन पूछा था सर. नहीं, बट -246 का बुक वैल्यू है सर. -246 का हाँ. ऑपरेटिंग मार्जिन -29.4 है. ईपीएस -21.4 है. यानी यार आपको यही कंपनी मिला क्या? नहीं सर, मिला मतलब मेरा वैसा कोई व्यू नहीं था, बट मैं आपको पूछ रहा है क्योंकि कैसा है सर, कुछ बार रहता है कि हीरो टू जीरो स्टॉक्स में मतलब रहता है. मैं वैसे गैम्बल नहीं करता सर, सीरियसली. बट नहीं, मेरे को लगता है शांतनु जी, आप पहले निफ्टी के हीरो जीरो खेलते होंगे और यहाँ पर भी अभी कैश में भी हीरो जीरो खेलने नहीं सर, लगे मैं आप. निफ्टी के ना कभी कैश कभी भी सर हीरो जीरो नहीं खेला सर. नहीं. हाँ भाई, एक काम कर. क्या भाव है?
9 रुपए रहेगा सर, 9 9.5। 9 रुपए 10 पैसे। uh, 5 लाख ले लेना। हेलो शंतनु आई भाई, एग्री। 5 लाख ले लो। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं तो ऐसा नहीं सर। करो ना, हमारे वहाँ एक स्पेक्युलेटर था प्रीमियर ऑटो में। वो कैसा ऑर्डर देता था, 400 का भाव चलता हुआ ना, बोले 450 भाव करके बोलो, तो ब्रोकर पूरा दिन 450 कर देता। वैसा आप 9 रुपया 10 पैसे में बोलो ना, मैं 50 रुपया कर देता हूँ, ले मजा करो। अरे नहीं सर, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता था, मैं बस यही पूछना था कि टर्न अराउंड स्टोरीज जो है मतलब वो वैसे चलते हैं, कभी आपके एक्सपीरियंस में आपने कभी देखा है, इसलिए पूछा था, बाकी और कुछ नहीं था अरे सर। पूछा है टर्न अराउंड, लेकिन डेड बॉडी वो थोड़ी टर्न अराउंड होता है यार। शरद जी, देखो देखो शांतनु जी, देखिए पेनी स्टॉक सब खेलते हैं, ठीक है, शायद मैं भी एक आध बार कहीं खेल लूंगा, बट प्लीज कीप इन माइंड द पेनी स्टॉक इज अ पेनी स्टॉक फॉर अ रीजन। बराबर है सर, एकदम बराबर है। हाँ, मतलब इतना हॉट प्रोस्पेक्ट होता ना, अभी तक कोई लार्ज बायर या कोई जाके उसमें घुस के अपना एक अनाउंस कर चुका होता। बराबर है सर। genuinely अगर promoter is turning around, is turning over a new leaf or whatever it is, आप ट्विटर पे ही आपको देखेंगे बहुत सारे they are large investor, they will find some company that you have never heard of. चिराग जी, इसमें रिजर्व भी -1800 करोड़ है, बोरोइंग 3100 करोड़ है, लायबिलिटी 2400 करोड़ है, बट पता नहीं यानी क्या ये कंपनी कौन लेने वाला है, अगर लेने वाला है भाई तो। नहीं सर, उसके एसेट्स मतलब बात चल रही है तो बता रहा हूँ कि एसेट्स उसके ऑलमोस्ट 13,500 करोड़। शांतनु जी, आप इसमें प्रॉफिट में है कि नुकसान में? शांतनु जी बोलिए। चले गए शायद। अजय शर्मा जी बोलिए। नमस्ते शरद सर, समर सर। नमस्ते सर, बोलिए, पूछिए। मुझे सर समर सर से पूछना है सर, मुझे सर। अरे आप म्यूट हो गए, पूछिए, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ नमस्ते सर, समर सर। हाँ बोलिए सर, क्या पूछना था? सर समर सर से पूछना है मुझे सिर्फ ये सर, इंडियन बैंक और पीएनबी सर दोनों मैंने कैश में लिए हुए हैं सर, और बहुत नीचे की रेट में लिए हुए सर। इनको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं कि सर, दो एक साल के लिए जैसे? हाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना सर दोनों में? नहीं। चलो सर ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। थैंक यू सर। भूपेश जी, भूपेश सिंह। हाँ अभिषेक बोल दो। भूपेश भाई 1 मिनट। हाँ अभिषेक बोलो। Good evening, everyone. गुड इवनिंग। So, I just wanted to highlight a few observations on a few data points of the last one couple of weeks. तो ये पूरी रैली चालू हुई तुम्हारी 18,800 से on the day when Mr. Adani got a clean sheet from the Supreme Court. तो उसके बाद से ये 18,800 से निकला. And in fact, this came out like 3 days before the poll results came out. So someone was in the know. इतना ब्लेटेंटली पहले ही कर दिया कि हाँ भाई तो ले ले क्लीन चिट, तो सबसे धूल से धुला हुआ आदमी है. Then you saw what happened with Adani after that. Then just after the results came out, then he gets एक और न्यूज आता है कि भाई साहब यूएस वालों ने तो वहां से भी दे दिया क्लीन चिट, ले एक और 20% ऊपर. So somehow or the other, there's a big hand. And also, if you look at the kind of stocks that have run up in this entire rally, you can see Coal India, NTPC, then you have your HAL, BEL.
एंड BHEL, तो यही सब सारे PSU के स्टॉक ही भागे हैं ये जो अपनी रैली हुई है. तो यू कैन से वेरी लाइक इवन अ ब्लाइंड मैन कैन से कि हाँ भाई यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है, एक ही सरकार का ही है वो तो अभी. And then today, what happened today with Mahua Moitra being kicked out from the assembly, it does not show a good light at all. Ki the kind of governance that our mother of democracy country is doing. Few things which I think, yeah. And then, तो अभी जो हुआ है, I think most of retailers would have missed out on the rally because exit polls did not suggest कि अभी ये हुआ. So now every retailer wants to get that 10x, 20x, 30x which you got in the call side. All the retailers are waiting to get that on the put side, and in the process they're just keeping on accumulating puts. बार करते जाएंगे. So as long as this does not stop, it's not going to fall anytime soon. तो ये है एक चीज. I think Sachin also was speaking about this. कि retailers will always try to do the opposite of what the trend is doing. हो ही रहा है अभी. In fact, if you look at the data also, on that day, I think the majority position on the downside was by retail itself. उसके बाद जाके जो हुआ है, definitely something seems to be fishy. But you never know कि how long can it last, वो तो किसी को पता नहीं है. So I think better not to preempt, and to everyone, most of the people who are here who will be looking at taking on puts. So just wait until at least एक previous day low तो taken out हो जाए. उसके बाद जाके अगर करेंगे तो ठीक है. अभी जाके करना बेवकूफ़ी होगी. Because you never know how long these guys can hold it up. आपका तो capital limited है. So these are a few points. And then coming to the stocks, अभी क्या हो रहा है कि profit booking तो हो रहा है, but then towards the end of the day, some way or the other, they are able to bring it back up again, either by pulling Reliance or HDFC. They just have 2 stocks or 3 stocks at best to keep the market up. तो वही चलते ही जा रहा है. HDFC बैंक को उठा लो, हो गया तुम्हारा. देन जो अच्छा वाला प्रेशर है वो प्रेशर आने वाला है नहीं, unless it's news driven like Balrampur Chini. And even this Balrampur Chini thing, yeah, I think Chirag and me were discussing on the tweets on the comment section कि कितने बार चेंज कर दिया उसने एक दिन के अंदर, 3 बार चेंज कर दिया. एंड देन दैट रेड बॉक्स ग्लोबल गाय, आई थिंक 3 बार उसने पेडलिंग कर दिया वो न्यूज में. इन द मॉर्निंग ही सेज हाँ भाई नेगेटिव न्यूज है, भाई 12 बजे बोलते हैं हाँ नेगेटिव न्यूज नहीं है, फिर से बोलते हैं नेगेटिव न्यूज है. मतलब पीपल आर हैंड इन ग्लव हर जगह पे. मैनिपुलेशन तो खतरनाक ही हो रहा है. बेटर टू न्यूज में ही नहीं, even the stock price movement also. I mean, I post stocks on the other handle every day. I post for cash stocks. And I mean, it's more discipline for myself than anything else. So usme Balrampur Chini showed at least to me it showed a buy trigger on 20th, right? And I think 20th को दिखा था. So and my standard this thing is 6% is this thing 6% stop loss. And चल गया. मैंने कहा यार ये क्या हो गया, कैसे चल गया. फिर उसके बाद मतलब I had I have a trailing stop loss, so कट गया वो. But वो कटा उसके बाद immediately that the whole thing started falling through. So it is as if the stock was pumped to a certain to meet certain technical triggers and raised, and then the news came. Otherwise there is no this thing, and everybody knows that कि भैया वो चीनी क्या है, वो एथेनॉल वाली कहानी पता नहीं पिछले 5-6 साल से चेपे जा रहे हैं. Ethanol is bad for the environment, is bad for India because of water intensive crop. Last 6 years or 8 years it has been pumped to high heaven. उससे पहले भी चल रहा था, पहले 10% ब्लेंडिंग था, 30% हो गया, 40% हो गया. मतलब it's a water intensive crop, the sugar, right? And then you're using that. वैसे इंडिया में पानी की कमी है, आप उसको बना रहे हो, उस पर कहानी बना रहे हो, उठा के चेप दिया नीचे. अभी जाओ देखो अब क्या होता है इस पे. मतलब everything is hand in glove. It's not just news. It's everybody is hand in glove. This is just one example. ऑटो में तो बहुत सारे ऐसे वाले.
JLR का नंबर आता है, फिर बोलता है नहीं है. Then that Tata Technologies IPO on that day when the listing happened. By the rumor, sell on news, but sell off तो हुआ नहीं, but ठीक है. That's very very dangerous. अभी किसी दिन ऐसा न्यूज आ जाएगा तो फिर तो पकड़ते ही बैठ जाओगे उसको फिर. So that's the thing. हाँ, आप ये देखो ऑटो में न्यूज, राइट? It said what? Somebody tweeted some big handle. I forget the handle. Some big handle tweeted क्या highest sales in 9 months. ऐसे कोई कंपेयर करता है? It is year on year. आप बोलो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बोलो ईयर ऑन ईयर, बोलो डेकेडल ग्रोथ, बट 9 months. ठीक है, अभी कर लिया 9 महीना, फिर बाद में न्यूज आया कि कि नहीं वो 4% ग्रोथ है, and that is also lower than before. So I mean, if whoever is playing this thing, you should have the good sense to understand what is happening. If you're following the news, you are just being taken for a ride. That much is very clear. या एसके सर मैं ये कह रहा था शांतनु भाई वापस आ गए, एक बार उनसे पूछ लेते हो प्रॉफिट लॉस वाला. कहाँ पर है शांतनु भाई? नहीं भाई, अब मेरे को नहीं सुनने का है फालतू का. देखिए, फालतू बात सुनने से आपका दिमाग सड़ जाता है. मैं कभी गंदा स्टॉक के बारे में बात नहीं करता, खेलता नहीं हूँ. एंड आई डोंट लाइक पीपल टॉकिंग अबाउट बी ग्रुप शेयर्स. ये तो बी ग्रुप क्या जेड ग्रुप के नीचे का है. तो आपको ऐसे भाई कुछ बोलना है या शांतनु भाई का वकालत करूं? हेलो. नहीं नहीं सर, बोलना कुछ नहीं है. आई एम जस्ट हियर टू लिसन. आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन. हाँ भूपेश भाई बोलिए. भूपेश भाई. हेलो सर. हेलो. या बोलिए सर, यू आर ऑडिबल. सर पटेल इंजीनियरिंग ले सकते हैं इस रेट पे? ठीक रहेगा? क्या भाव है? 62 है सर. कितना मार्केट कैप है? ये तो नहीं पता सर. कुछ तो पहले पता करो और अपने दिमाग में सोचो कि इतना वर्थ है कि नहीं, और साथ में डेट भी जोड़ देना. ओके सर. थैंक यू. ऐसी अंधाधुन मत लो शेयर यार. जी थैंक यू. और एक बात पूछना है आपको, अच्छे स्टॉक से एलर्जी है क्या? नहीं सर. नहीं तो ये 5,000 आइटम में से ये क्यों पकड़ा? ये सर मेरे फ्रेंड ने लिया हुआ था तो उसने सजेस्ट किया था कि इसलिए मैं सोच रहा था. ठीक है भाई, आपका मर्जी. दोस्तों बहुत कुछ करता होगा, सब कुछ आप करोगे क्या? आप अपना मन बनाओ ना सर. इन्वेस्टिंग इज अ रिलीजन. जी. तो धर्म करते हो तो आप मंदिर में जाते हो जी. या मस्जिद में या चर्च में जाते हो. जी. तो आप किसी को बोलते कि आज जाके ऑन माय बिहाफ, आप खुद ही जाते हो. जी. तो ऐसे भी इन्वेस्टिंग में इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. इफ यू वर्क ऑन हियर से यू विल नेवर सक्सीड. ओके सर. आपका जो भी दिमाग है उसको इस्तेमाल कीजिए, आपको पैसा मिलेगा सर. जी थैंक यू सर. थैंक यू.
Acha, by the way, there's a news from 6 hours ago now that sugar came up. No dilution in ethanol petrol blending plant despite sugar feedstock. This thing. ये कब का है news? अरे but it doesn't make sense. No, It does not. you can't use cane juice for making ethanol. That is one part. Another part is you can mix anything else, maize, rice, whatever, like husk, for ethanol, and that ethanol you can mix as per the current ratio. That is what it is. See, the issue is about using juice to make ethanol. It's not allowed. बाकी सब सेम रहेगा तो अब अरे सर, वो जूस में से 10% इथेनॉल निकलता है, जस्ट टू कैटर द शुगर डिमांड। उन्होंने ना बोला है कि भाई ये सब मत करो, क्योंकि वहां से 10% इथेनॉल निकलने वाला है। मेजर इथेनॉल कम्स आउट ऑफ मोलेसिस विच इज जस्ट ए बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। तो इतना उन्होंने ये न्यूज चैनल ने हल्ला गुल्ला मचा दिया है कि पूरा स्टॉक को जंग कर दिया है। नहीं, but Samarth, I disagree with you. If juice is not allowed to be used for ethanol, it will be converted to sugar. If it's converted to sugar, the production will be very high and the prices will drop. That's the logic. हाँ वही सर, शुगर का जो भी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सब किया है। Look, whatever might be the reason, अपने को क्या करना है भाई? अपने को खाली we have to just understand what will happen with this. Why they did it, how they did it, it's none of our concern, and अपने कुछ कर भी नहीं सकते समझ। एग्री सर, एग्री सर, एग्री। जो चीज पे अपना कंट्रोल नहीं है वो क्या मगजमारी करने का। अपना कंट्रोल है लॉस प्रॉफिट, अपना कंट्रोल है क्या लेना क्या बेचना, बस इट एंड्स देयर। न्यूज है, ये अभिषेक कुछ भी बोलता है, ये हुआ, होने देना यार, क्या है। देखिए एक बात समझिए, इंडिया में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, मैनिपुलेशन हर बाजार में होता है, सो डोंट कि अपने वहां हो रहा है, सब जगह होता है। अपने वहां मात्रा वो थोड़ी ज्यादा है, बस यही बात है। चलिए, who's next? हाँ बोल समर्थ, कौन संदीप है? भाई, संदीप। आप बोलो संदीप भाई। अनम्यूट कीजिए सर। अरे यार, नवरूप भाई आपको भेजा है रिक्वेस्ट, प्लीज इफ यू आर फ्री यू कैन कम अप एज ए स्पीकर। इसके आपको कुछ पूछना है क्या? इसके एक मिनट हेलो राम भाई। हेलो हाँ, या इसके आपको सर। पूछना है हाँ जी, क्या? मुझे पूछना है कि अगर किसी को लगता है कि स्टॉक मार्केट या फिर इट इज़ ऑल अबाउट, मतलब इसमें हम कुछ काम कर रहे हैं, देयर इज़ नथिंग टू डू विथ स्पेकुलेशन, और ये मतलब फंडामेंटल या टेक्निकल सीख के या कोई कोर्स वोर्स लेके मैं इसमें अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, तो उसको कैसे समझाएंगे? क्योंकि एक मेरा नोन पर्सन है, ही इज़ बाय नाउ he's got addicted to playing calls and puts and whatnot, and he refuses to believe कि ये मतलब सट्टा है, ये गैम्बलिंग है। तो उसको, और वो मतलब ही बिलीव्स कि कोर्स वोर्स करके या इसमें पढ़ाई करके ऐसा वैसा करके वी कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। तो
कैसे मतलब उसको समझा सकते हैं? व्हाट विल बी एन अप्रोप्रिएट आंसर फॉर हिम टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट कि वो गलत सोच रहा है? नहीं, वो जिसको समझ में आ गया कि ये बराबर है, उसको आप नहीं समझा सकते कि ये बराबर नहीं है। तो फिर मतलब अब मुझे कोशिश आप नहीं करनी सिगरेट चाहिए? पीते हो? नहीं, आप सिगरेट पीते हो? नहीं सर, मैं तो नहीं पीता, वही बंदा पीता है जिसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तंबाकू खाते हो? नहीं सर, शराब कभी कभी पी लेता। तो मैं बोलूं ना पियो तो भी आप छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ नहीं, पाऊँ। ये ये आपने क्या बोलते हैं, हैबिट है। जब तक उसके पास में पैसा है वो चलेगा, और बहुत जल्द पैसा खत्म हो जाएगा, वो अपने आप बंद हो जाएगा। चिंता मत करो। ठीक है। क्या प्रशांत? प्रशांत जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए सर। What is the problem here with you? राम चौधरी जी बोलिए। सर गुड इवनिंग सर और सभी को गुड इवनिंग सर। मेरा एक तो क्वेश्चन ये था कि जब आप कह रहे थे कि चार्ट और टेक्निकल के अलावा भी आपके पास क्या एज है, तो सर हम लोग तो सब बच्चे हैं आपके सामने, तो सर थोड़ा सा आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि हम कैसे उस चीज से बच सकते हैं, क्योंकि कई बार माइंड और चार्ट दोनों में मतलब लड़ाई रहती है कि ये को लेनी है कि नहीं लेनी। चार्ट कुछ और बोलता है, माइंड कुछ और बोलता है, और सही चार्ट वाला होता है, लेकिन आपके सबसे एज कहाँ होगी। दूसरा एक छोटा सा स्टॉक है स्विट्जरलैंड लिया था मैंने, तो उसमें 50% मैं राइड कर चुका हूँ, लेकिन अभी उसको एवरेज करूँगा प्रॉफिट में भी या निकल लूँ, क्या कंडीशन रहनी चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि इसमें पुराना वापस हो सकती है पुरानी कंडीशन। देखिए, पहले स्विट्जरलैंड के बारे में बात करते हैं। आपने लिया है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, ओके। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रीड, it depends on how much money you have, it depends how much this profit will enhance your living standard। बहुत सारी चीजें हैं। सर ये मेरी एक्सपेक्टेशन के बराबर तो चल चुका है, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पुरानी कंडीशन वापस आ सकता है क्या आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। यार, शेयर बाजार है, सट्टा बाजार है, ये 400 भी हो सकता है और वापस 2 भी हो सकता है। बट ये अगर ये स्विट्जरलैंड की बात नहीं करता हूँ, सब स्टॉक का अभी का जो माहौल है ना, उसमें आपको लगेगा ये गिरेगा ही नहीं, कभी नहीं गिरेगा, ये शेयर गिरेगा ही नहीं। वो वक्त का अंत आ चुका है, शेयर गिरने का चालू हो गया। आई कैन सी, इफ यू विल नोटिस, एवरी डे एडवांस डिक्लाइन is inclined towards decline. What does it say? More stocks are falling. So, if I were you, no. ये अभी आज क्या भाव था सुजलो? आज 38 क्या है सर? बेच दो, और 45 के ऊपर जावे तो ले लेना वापस। ठीक है सर। और मेरा जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आपसे वो थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कम आएगा। सवाल तो सर आपने ही स्टार्ट किया था एज वाला, कि टेक्निकल और चार्ट्स के अलावा आपके पास क्या एज है, तो हम जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं, जनरल ट्रेडर्स हैं, उनके पास ऐसी क्या एज है आपका एक्सपीरियंस में कुछ तो है सर? नो, आर यू आस्किंग मी? हाँ सर, आप इसी तरह प्रकाश डाल सकते हैं कि कुछ आप आइडिया दोगे हमें। नहीं, देखिए, आई एम टोटली अ फंडामेंटल पर्सन, मुझे कोई मतलब नहीं है चार्ट बाट से। और हाँ, आप जो चार्ट बोलते हो वो मैं आंखों से देखता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो ऐसे तो मैं भी मतलब चार्ट ही देखता हूँ, लेकिन मैं आईज आर लुकिंग एट द चार्ट। और आप जो देख रहे हो, आप इट इज एट द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लेट,
I see it first. And basically, if you're not a trader, an investor, so I don't think कि चार्ट बाट काम में आता है. अच्छा फंडामेंटल आइटम ले लो, जान हो जाओगे. ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर. ये ले लो यूबैक 4-5 हजार हो जाएगा. ये मैं विवेक, बहुत बोलता था विसूवियस 1300 का भाव था. फोसे को भी 1200 था. ऐसा शेयर ले नहीं क्या है. ओके, थैंक यू. शमशाद. गुड इवनिंग सर. सर मेरा क्वेश्चन है या और आपका उस पर थोड़ा व्यू चाहिए. हिंदुस्तान फूड और भी सोना BMW कैसा लेने के लायक है? कौन सा कंपनी सर? हिंदुस्तान फूड और BMW सोना BMW. हेलो, क्या बोल रहे हैं? सोना, सोना BLW और हिंदुस्तान फूड्स. जी सर. मालूम नहीं है. हिंदुस्तान फूड का क्या भाव है? 500. 542 और समथिंग है ये. तो वही है भाव लास्ट 1-1.5 साल से. तो उससे लेना सही नहीं है. तो एक ही भाव है आपको यार. आप FD कराते हो तो 6-7% तो मिलता है ना साल में. जी सर, तो 6-7% मिलता है. हाँ, तो इसमें कुछ नहीं मिला है यार. हाँ, ये तो उस जगह पे है. वो फेस वैल्यू घट गया. 2000 रुपए था तब मैंने बेचा. अभी वही भाव है. कोई अच्छा सा जो 1 साल 2 साल के लिए. तो सर ने अभी बोला ना. ये शेयर क्यों लेने का है बताओ मेरे को. मार्केट गैप कितना है इसका? मार्केट कैप सर नहीं, बस ये थोड़ा सा ज्यादा है इसमें. ये मैन्युफैक्चरिंग जैसे डेक्सोन को लोग इसे डेक्सोन से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये देखना हुआ. अरे जब आपको मार्केट कैप मालूम नहीं है तो क्यों लेने का है वो शेयर, वो मैं पूछता हूँ. लॉन्ग टर्म के लिए सर कोई ऐसा जो कुछ आगे 2 साल या 1 साल के लिए. और कितना इन्वेस्ट करने का? मतलब अराउंड इन्वेस्ट 10 लाख. हाँ, 10. तो आप समझ भाई को DM करो. समझ भाई को DM कर. जी ठीक है. ओके, थैंक यू सर. मुकुंद जी. Good evening, Samar sir. Good evening, Sharad sir. Good to listen to you after a long time. Hope you're doing good. But just wanted to say that what Abhishek had said some time back regarding the reports of ethanol in a day 3 times. I mean, contrasting reports coming out and just market end होने के पहले वो फाइनल सर्कुलर आ जाता है. सो अभी ऐसे हो गया कि सर देश में न्यूज़ और जनता दोनों का मजाक उड़ाया जा रहा है. एंड पीपल जस्ट कैन नॉट सी दैट. और ये सांता क्लॉस रैली तो ऐसे ही चल रही है कि बस वो स्टेशन और ट्रेन का कोई एंड ही नहीं है. ऐसे चल रहा है. बस साइड लाइन पे बैठ के जस्ट वी आर वेटिंग. So I also wanted to ask about Nestle. So what would be a good time to enter the stock? I don't have it in my portfolio as of now. Do you think after the stock split it's good to buy? What's the problem if you buy now? Nothing, sir. Look, I don't understand this kind of investing. If you like it, buy it, no? Okay, sir. Yeah. अरे मुकुंद भाई, एक का हुआ है ना फेस वैल्यू. हाँ सर. हाँ. हाँ, तो वो 9.5 पे लिस्ट होगा. अच्छा, ओके. डिवाइड बाय 10 नहीं होगा, 9.5 होता है वो. देख लीजिए. अच्छा. कोई भी हिस्ट्री में देख लीजिए. आयशर देख लीजिए. अशोक लेलैंड देख लीजिए. कोई भी. मैं क्या बोलता हूँ, आप बात करने से थोड़ा समझदार आदमी लगता है. क्या तुम लगा के बैठा है, ले लो ना. और हम बोलते हैं आप है ना,
आपका उम्र कितना है भाई? I'm 37 sir. हाँ 37 हाँ, तो ये 37, तो 33 साल के लिए ले ले। 100-200 रुपया ऊपर नीचे मत देख, तू पागल है। Okay ऐसे sir. होता है। Sure sir. Thank you sir. Thank you so much sir. और जो चीज अपने 20-30 साल के लिए लेता है, उसमें 100-200 रुपया क्या है? मतलब why do you want to look at it also यार? Just tell your Got it. गिरेगा तो और खरीद लेना तुम। Yes Chirag sir. Yeah, हाँ, that's the intention sir. Yeah. 33 years का तो पता नहीं सर, 15 साल के लिए भी हो गया तो काफी है। Yeah. ये 15 साल में काम नहीं आएगा आपको, ये काम आपके रिटायरमेंट के लिए आएगा। No, I said 33 years. He's 37. Yeah, that's what I'm saying. He wants it to hold it for 15 years. Hey, just saying sir. Yeah. No worries. Thank you I sir. understand what you're saying. We're not trying to this thing. All I'm trying to say is that आपने अभी ले लिया, ठीक है? And your holding view is, let's say, a long view. Okay, it could be 5 years, 10 years, 15 years, whatever it is, right? So, अब you believe it's a good company, so and there are many reasons why it is a good company. So you bought something today, okay? The price fell 20% tomorrow. It's possible. Anything is possible. So what will you do? You buy more. Exactly. I will add on dips. Yes. Yeah, there you go. So that's your answer. So ये सवाल क्या पूछना? खरीदते जाओ, जब भी लगे 10% गिर गया तो और खरीद लेना, आगे चलो। मैं तो मुकुंद भाई, मैं क्या बोलता हूँ, tomorrow you buy 100 shares. If it goes up by another 100, if it falls by another 100, you have to keep on buying only, bas. Yes sir. Yeah. Thank you sir. Thanks a lot. Yeah. So वैसे भी I mean when I every Friday I look forward eagerly to listen to you and Samar sir. This is the only place where I can find common sense and sanity, which seems to be lacking a lot in our 140 crore population these days. So you take care sir. Thank you so much. Bye bye. Yeah. यस कुमार, बोलिए सर। हाय सर, गुड इवनिंग। हाँ सर, एक्चुअली मेरा पीएफसी का है, अभी होल्डिंग में है। एक्चुअली मेरा 100 का था, मतलब एवरेज प्राइस अभी 384 में चल रहा है। तो आपके हिसाब से अभी बुक करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? क्या भाई, क्या है तेरे पास में? पीएफसी पावर फाइनेंस। तो व्हाट इज योर क्वेश्चन? नहीं, मैं 100 में मेरा एवरेज प्राइस था, अभी 384 में चल रहा है। तो अभी कुछ पार्शियली बुक करना चाहिए या फिर मतलब होल्ड करना चाहिए? नहीं, होल्ड करो, अच्छा है। लेकिन आई एम शॉर्ट। वो ठीक है, मेरा तो फाटका रहता है। अगर आपको इतना पैसा मिल रहा है, तो और हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग? ओके सर। सर और एक सवाल था। नहीं, आप बताओ ना मेरे को। हाँ, if you think if you have bought at 100 rupees and at 400 you don't want to sell, तो क्या भाव में बेचना चाहते हो? हाँ सर, बहुत भी सही बात है। नहीं, बताओ ना मेरे को क्या भाव? What is in your mind? No, actually, I was thinking like I will sell something, some partial, okay. So I will hold the rest. I mean, 50% I will sell. No, I understand that, but what are you expecting out of it? 1,000, 2,000, 5,000? एक्सपेक्ट कर रहा था वही 600, 700। अच्छा, हाँ तो रखो। सर और एक क्वेश्चन है कि आजकल तो देख रहा हूँ कि एफआई का एक्सपोजर ऑप्शन में बहुत ज्यादा हो रहा है।
तो लास्ट देखोगे तो यस्टरडे देखोगे तो वो उनका 93,000 का था ऑप्शन सेलिंग में। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो 93,000 करोड़ का ऑप्शन सेलिंग करे तो उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? हाँ बोलिए। हेलो हेलो वापस पूछिए सर आप। हाँ हाँ सर, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि आजकल एफआई का एक्सपोजर ऑप्शन में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कल देखोगे तो उनका 93,000 का ऑप्शन सेलिंग था। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो 93,000 करोड़ में ऑप्शन सेलिंग करें तो उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? तो उतना ही तो कोई बाय किया होगा ना। तो कौन कर रहा है, वो बाइंग कौन कर रहा है? रिटेल। आपके जैसे जिसने 100 रुपए में पीएफसी लेके अभी 300 350 पे रख रहे हैं ना, वो बाई कर रहे हैं सर। नहीं, डेली डेली तो उतने जो हो रहा है तो वही, मतलब पहले से तो नहीं था इतना ऑप्शन में, उतना एक्सपोजर तो नहीं था। आजकल जितना भी हो रहा है तो वही मेरा क्वेश्चन था कि सर जी इतना तो रिटेलर। हाँ FIIs cannot short calls, बराबर है। they can short puts only, पहले हाँ समझिए। सर, जो भी हो, पुट हो कि कॉल हो, तो कोई तो उतना अमाउंट में तो कोई तो सपोर्ट किया होगा। तो एक ओपन इंटरेस्ट बनता है, जैसे कि एक बाय करे सेल करे तो एक ही ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, राइट? तो उसी हिसाब से अगर वो 93,000 में सेल कर रहे हैं तो कोई तो बाय किया होगा, उतना अमाउंट में कोई तो बाय किया होगा। यही लॉजिक से मार्केट बढ़ रहा है, आप समझे। निफ्टी इसी लॉजिक से बढ़ रहा है, इसी लॉजिक से HDFC बैंक बढ़ रहा है, इसी लॉजिक से इन्फोसिस बढ़ रहा है कि कोई बेच रहा है कोई ले रहा है। हाँ सर, वो तो सही है, लेकिन ऑप्शन में उतना रिटेलर के पास उतना कैपेसिटी इंडियन मार्केट में कि वो उतना सपोर्ट करें डेली बेसिस में। हाँ 0-0 खेलने वाले मिल जाते हैं सर मार्केट में, रोज एक्सपायरी का 0-0 है। आप समझो, हाँ रोज वो सबको तो हीरो बनना है। हाँ वो तो एक्सपेक्ट तो डेली इसलिए होता है। हाँ वो तो सही बात है। लेने वाला ज्यादा है कुमार जी। हम्म। FIIs ऑलवेज सेल, उनको जहां पर भी सेल मिलेगा वो सेल कर लेंगे। वो जितने अमाउंट को डाले हैं सब कुछ भी ऑब्जर्व हो रहा है ऑप्शन में, तो हाँ इतना भी लेने वाले रिटेलर है ना, मतलब। जीरो। हाँ जीरो हो जाता है ना ओके। कॉल और पुट दोनों। हाँ वो तो सही है सर। तो फिर ओके मैं आपको ओके। एग्जांपल देता हूँ कुमार जी, एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ हाँ सर, आप बोलिए। एक है हाँ ना, पेन लेना 500 रुपए की मार्केट से, हाँ हाँ बराबर है, नई पेन। वही वही आप हाँ वापस जाके आप मार्केट में बेचने जाना, यू विल नॉट बी हाँ एबल टू सेल दैट पेन इजीली। हाँ हाँ वो तो सही है। हाँ क्योंकि लेना इजी है, बेचना बहुत डिफिकल्ट है, हाँ सर। बराबर है। हाँ सर, ओके। लेना थैंक यू हमेशा सर। इजी है, इट इज वेरी इजी, बिकॉज आपके अकाउंट में पैसा आपने ले लिया। हाँ सर, वो भी सस्ता ही रहेगा लेने के लिए। हाँ, सब चीज और जब कभी। मिलता है ना, तब आपको लगता है कि मेरे पास 500 है, मैं 500 की चीज ले लेता हूँ, बट आप बेचने जाएंगे ना तब उसकी वैल्यू पता चलेगी एग्जैक्टली कितनी है। कोई 390 में मांगेगा, कोई 300 रुपए में मांगेगा, वो 500 रुपए की चीज। हाँ, कभी कभी भी एफआई का भी मतलब बाइंग भी होता है। वो भी 30-40 थाउजेंड करोड़ का होता है कभी कभी। तो उनको भी आप रिटेलर मतलब सेल करें। आप वो सेबी का डेटा भी देखिए भाई, 98% 99% ऑप्शन बायर लूज कर रहे हैं अभी मार्केट में, 2-4% प्रॉफिट में है। हाँ सर, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि वो तो सेलिंग ठीक है, लेकिन कभी कभी एफआई भी बाइंग भी करें ऑप्शन पे, 30-40 थाउजेंड के बाइंग भी कर रहे हैं। कभी कभी किए थे वो भी। तो उसी हिसाब से वो क्या रिटेलर से उनको सपोर्ट करे, सेलिंग करे उतना अमाउंट में। हम्म। एवरी सेलर इज अ बायर ना, अदरवाइज ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? हाँ सर, वो तो सही है। मैं वही बोला कि इतना अमाउंट वो रिटेलर को सपोर्ट करें, वही मेरा क्वेश्चन था। नहीं तो आप देखिए ना, कितनी बार तो अब तो कितनी, मैंने आई मेंशन्ड दिस अ फ्यू मंथ्स अगो, अब तो नाउ इट इज पब्लिक न्यूज नाउ, मतलब इट्स कॉमन न्यूज नाउ दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट ऑप्शंस मार्केट इन द वर्ल्ड। हाँ सर, वो तो बहुत ज्यादा, सबसे तो ज्यादा है हाँ वो तो डेरिवेटिव में। फिर वो कैसे होगा? फिर वो अगर पार्टिसिपेंट नहीं है, मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं है, तो कौन करेगा फिर? आप देखिए, हाँ सर। mature markets like US आर फार बिहाइंड
आज ही किसी ने एक ग्राफ डाला था, टेबल डाला हुआ था, mature markets like the US are far behind in terms of option leverage. In India we are running at some ridiculous 55 times or something like that. So there is obviously a participant ना. Who is the participant? It's retail ना, it's people like you and me. अभी वो अभी एक कहीं पर न्यूज़ आई थी, and I also know because I had some meetings with some brokers a few weeks ago. Large amount of participation comes from rural India, in UP and Bihar. Right, large number of participants come from government servants. अब होता है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, वो अपने वाइफ के मदर के नाम पे करते हैं, जो भी है वो भी हो सकता है। So there is now widespread participation, widespread participation. ओके सर, और सर जो सेटलमेंट हो रहा है हमारा मार्केट में, जो 15 मिनट में एवरेज लेके सेटलमेंट हो रहा है, और कोई मार्केट में अगर यूएस से देखोगे तो उनका मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा मार्केट ये क्यों है? क्या पूछा आपने? जो सेटलमेंट होता है लास्ट 15 मिनट का जो भी है प्राइस है, जो 15 मिनट में सेटलमेंट करता है, अगर दूसरा मार्केट देखोगे तो उनका तो नहीं होता है, सर कुछ सेटलमेंट ही नहीं है जो डे बेसिस में सेटलमेंट होता है लास्ट 15 मिनट में। ये टफ क्वेश्चन टू आंसर। शरद सर, आई थिंक नहीं है, आप रहिए यहाँ पर। ठीक है सर। दीपक राय जी बोलिए। दीपक राय। अच्छा सॉरी, मेरा म्यूट पे था सर। समर सर नमस्ते। सर नमस्ते। मेरा क्वेश्चन था कोटक महिंद्रा बैंक को, मुझे कुछ बाइंग करनी थी कोटक महिंद्रा बैंक में, तो क्या करना चाहिए इस वैल्यूएशन पे? अभी आपको करना है तो कर लीजिए सर, आपको ठीक लगता है। किस हिसाब से आपको कोटक बैंक अच्छा लगा सर? क्योंकि नहीं बढ़ा इसलिए? कर लो। नहीं, क्योंकि नहीं बढ़ा इसलिए? हाँ, ये एक रीजन है, और प्लस उनका काफी कंजर्वेटिव रहते हैं, तो उनका लॉन्ग टर्म में अगर मैं 10-15 या के साल के लिए देखूं तो इसमें मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव कहाँ पर इनका जो होता है एनपी और जीएनपी और नेट एनपी जो होता है उनका काफी कम रहता है, 1-1.5% तक रहता है, तो उनका क्रेडिट कॉस्ट 1-1.5% के आसपास ही होती है हमेशा। ओके। और 4% के आसपास उनका होता है उनका जो स्प्रेड है। समझ गए। अरे ठीक है यार, तुम हमको फंडामेंटल क्यों बोलता, हमको नहीं लेने। तो बैंकिंग में नहीं ले सकते हैं क्या कोई? अरे आप ले ना यार, कुछ भी ले। इंडिया इज अ फ्री कंट्री, यू कैन बाय व्हाटएवर यू वांट। ओके जी। और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 3-4 लाख करोड़ वाला कंपनी लूं, उतना मेरा हैसियत नहीं है। आपका है, आप लीजिए। अपना हैसियत है 5,000 10,000 करोड़। और वो दीपक भाई वो जो 4-5% का नहीं सर, एक मिनट, वो जो 4-5% का मार्जिन की बात कर रहे हैं ना, वो मार्जिन पर्सनल लोन और बिजनेस लोन से आ रहा है। अच्छा समझे? वहाँ पर मार्जिन ज्यादा है। ओके क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। और 15 साल के बाद पक्का ये 1900 में बिक जाएगा तुम्हारा। अच्छा, मतलब ये कंपाउंडर नहीं बनेगा लगता है आगे जाके। वो मैं किधर बोला, वो आप। अच्छा ठीक है, नहीं समझ गया मैं, ठीक है। एक बात पूछूं आपको? हाँ, नहीं मैं एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था कोई कंपनी जो 10-15 साल या 20 साल के लिए ली जाए तो बीच में बेचना ना पड़े, कंपाउंडिंग डिस्टर्ब ना हो, सेकुलर ग्रोथ हो, तो उस तरीके की मैं कंपनियां ढूंढता रहता हूँ 10-15-20। नहीं, आपको 50,000 करोड़ डालना है क्या? नहीं, मैं अपने रिटायरमेंट के लिए देख रहा हूँ। मेरा एज है 37-38 है, और मेरे पास तो नेस्ले ले लो ना। अच्छा हाँ, नेस्ले में है मेरे पोर्टफोलियो में, और मेरे पास आईटीसी है। उसमें ही रहो, वही दोनों बढ़ा दो।
ओके आईटीसी में मत बनाओ, नेस्ले लेते रहो। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ये सुकुमार जी का एक था। हेलो शरद सर, हेलो शरद सर, आई थिंक ही इज नॉट एबल टू। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। बिग शॉट बोलिए भाई। इक्विटी। So there are rumors that Lok Sabha elections might be called early in Feb. So how कौन बोल if that happens? Big shot. If that happens, if the Lok Sabha election is called early in Feb, so market will continue its bull run or it will remain sideways? How will market take that? How will it matter? ये सब रूमर पे आपने क्या बात करेंगे? आया है क्या? So they are planning after announcing, the election commission is announcing like planning to announce in like अरे भाई वो first week Feb. फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, फाइनेंस मिनिस्टर बोला वो इंटरिम बजट आएगा फरवरी में। Hello. Yes, I'm listening. Who told you? Your friend? There are rumors that in like some newspapers online. यार कुछ रीजनेबल बात बोलना। ये सब और मुझे इलेक्शन से खुद लेना देना नहीं। हेलो, हाँ बोलो। गुड इवनिंग। So I am mostly a momentum trader, so just two stocks I need in some queries. BCL Industries, that is going on right now. BCL Industries, सर प्राज इंडस्ट्री क्यों गिर रही है? बात कर रहे हैं विष्णु जी वो बात कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए ये ना। भाई बोल रहा है कोई। हाँ बोलिए एडी से। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्राज इंडस्ट्रीज क्यों गिर रही है अभी? अच्छा, सेलर ज्यादा है सर, इसलिए बिकवाली ज्यादा इसके लिए गिर रहा है। हाँ, बिकवाली ज्यादा है। तो क्या ये रिकवर होने की चांसेस है सर यहाँ से जहाँ तक गिरी है अभी? जैसे ही लेवाली शुरू हो जाएगी बढ़ जाएगा। और डेल्टा किस प्राइस में बाय करना चाहिए सर डेल्टा को? 10-20 रुपये में लेना चाहिए। 10-20 रुपये मैंने 10-20 रुपये डेल्टा कोर पाएगी सर? आपने मुझे पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अभी आएगा नहीं आएगा मैं भगवान थोड़ी हूँ। और देखिए नहीं है, हाँ ये एफएनओ स्टॉक है, ठीक है यार। मतलब ये धंधे का इतना वैल्यूएशन नहीं होता है। तो एक्चुअल एंट्री प्राइस क्या हो सकता है सर डेल्टा कोप में यदि कोई उसको बाय करना चाहे तो? सर यहाँ पे हम नेस्ले वगैरह की बात करते, आप डेल्टा लेके क्यों आते हो? आपको बर्बादी होना है क्या बाजार में? आप अच्छा शेयर लो ना, बहुत बढ़ेगा सब। ये सब में कुछ नहीं। आप उसका चार्ट देखो ना, कितना साल से इधर ही रखड़ रहा है। क्यों मरने को चाह रहे हो? अच्छा, और आपको शेयर वाला लेना है तो एनएससी का वेट कीजिए। ये सब कचरा पट्टी में मत जाओ सर। अच्छा, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा तेज बोलता हूँ, लेकिन आपका भलाई के लिए अच्छे शहर में आ जाओ सर। आपकी जिंदगी ऐसे सुधरेगी, ऐसे न्यारे न्यारे हो जाएंगे। ये सब में दुख ही दुख है। अच्छा जी सर, थैंक यू। ओके, आप बोलिए भाई। अभी एडीसी बोलिए जी। Okay, good evening, gentlemen. Let me try again. Okay, I'm mostly a momentum trader and some holding stocks. I need information regarding momentum, two momentum stocks that is in the news right now.
BCL Industries, I hold quite a lot. And another thing is VST Tillers, I'm holding it for medium time. तो क्या चाहिए आपको? अभी इसको मैं do I hold on to BCL Industries as a fundamental company or just as a momentum stock? Do I look into that? ये क्या है BCL क्या है? ये आपका वो जो है ना जो because of the Praj White is going down, BCL is I think it is coming up. I'm just a moment. I just see momentum trade. I saw it's rising. I buy like that, and I sell it quick if I use as a momentum for a few days. Sir, if you're a momentum trader, please. And you play with how much money? Let me tell you, around 80 to 90 L. So why don't you play UBAC or Nestle? There your money is safe. Yes, no, I'm always been, I don't know why, I'm always been between mid and small cap, always. So UBAC is very, very small cap. Which one? UBAC. UBAC Trends, HEUBACH. So, yes. That is also coming right now in name, right? It came to my target, means like on my list as a hold or small, like something like you can hold on. HEUBS, I think, right? Yeah. Yes, I know that. Yes, I think so. It has just yesterday I saw that name because it came as a hold. It has from sell to hold. It has come like that kind of thing. But I need a little bit on this. If you are VST Tillers, any idea? VST Tillers? ठीक है यार, खास कुछ नहीं है. ठीक. Well, it's not moving that much. That's what I'm thinking. But it's not going down also. Thank you so much, sir. Thank you. बोलिए, कोई भी बोलो भाई. सर ये नमस्ते सर. नमस्ते. ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर 5000 वाला कैसा है? आपका नाम क्या है भाई? वो आवाज पहचान वाला लगता है. सनप. समझ यू वो. PGHL आपके पास है कि लेना है सर? क्या है? ऑलरेडी है. 30 है. तो रखो. वो भाभी को भी दे उन्हें. रखो सर. और लू चलेगा ना? 4800 5100 के बीच में घूम रहा है अभी. या ये अबॉट ले लो. एबॉट भी अच्छा है, PGHL भी अच्छा है. ठीक. मैंने देखा है 99% of the people don't like good stocks. I don't understand why. Just slow moving. But किसी को भी अच्छा शेयर बोलो नहीं लेगा, और कचरा पट्टी बोलेगा भाग के ले लेगा. Just slow moving ना. Everybody thinks Anyway, that चलिए. कल पैसा बन जाएगा. Who's next? खुर्शीद. हेलो. हाँ जी सर, बोलिए. सर मैं तो मार्केट में नया हूँ. थोड़ा सा एक आप सभी धुरंधर है यहाँ पे, पुराने आदमी हैं. मैं तो जस्ट आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ कि मैंने जो है ना 2020 में कुछ 2-1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया था. तो वो बढ़ के जो है मैंने फिर खोला नहीं उसको. एंजल मैंने अकाउंट खोला था, उसके बाद मैंने उसको खोला नहीं. तो थोड़े दिन बाद में चेक किया तो 4-5 लाख रुपए करीब हो गया उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू. फिर मेरा कोई फ्रेंड था तो उन्होंने ऑप्शन में सिखा दिया मुझे, तो मेरा सारा कैपिटल चला गया. तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मेरे पास 10-1 लाख रुपए का अमाउंट है, तो मैं उसको किस तरह से इन्वेस्ट करूं ताकि मेरे को मतलब किस इसमें ट्रेडिंग वगैरह करके या कुछ ऐसा करके 10-20 हजार 10-15 हजार रुपए मंथली बन सकता है क्या एक्स्ट्रा तौर पे? तो आप सभी जानकार आदमी बैठे, तो मैं आपसे एक जस्ट सलाह लेना चाहता हूँ भाई, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मत कीजिए सर.
तो तुम ऑप्शन वाला है? नहीं सर, ऑप्शन तो मेरे को सिखा दिया, उसमें सारा पैसा चला गया। अब नए सिरे से मैं सोच रहा हूँ 10-1 लाख रुपए डाल के ऑप्शन को नहीं करके, और फिर जो है किस तरह से करूँ ताकि 10 से 15 हजार रुपए मंथली इनकम बना सकूं। ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें भी मौका दो ऑप्शन खेलने का आपके अकाउंट में। हाँ, एक काम करो खुर्शीद भाई, कोई बिजनेस चालू करो, वहां पर आपको ये नहीं मिलेगा। खुर्शीद भाई। हाँ सर। वेयर आर यू फ्रॉम? मैं राजस्थान, जोधपुर सर। आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करते जाओ, आराम से मिलेगा सर। 10 या 50,000 मिलेगा। आप समद भाई का कांटेक्ट करो। अच्छा सर, समद भाई इसमें है सर? ये ऊपर है ना जो ये गोल्डन आई करके। हाँ सर, ठीक है सर। हाँ, उसको फॉलो करो आप। ठीक है सर, मैं अभी फॉलो कर लेता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। या ऋषि भाई, ऋषभ कुमार बोलिए ना भाई। ऋषभ नहीं बोलेंगे, चलिए। ऋषभ सिंह, जेबी बोलो, जेबी। जी नमस्ते सर जी। नमस्ते जी सर, मैं बजाज होल्डिंग के बारे में जानना चाहता हूँ, बजाज होल्डिंग में लेना चाहता हूँ, तो आपकी उसमें क्या पोजीशन? इतना बड़ा शेयर लेके आप क्या करोगे? मैं उसको ट्रैक करता हूँ लेकिन ले नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा बढ़ ही जाता है। 7,000 रुपये में लेना चाह रहा था, अभी 8,000 होने को है। उसका जेबी मार्केट कैप। जेबी हाँ जेबी जी। सुनो। जी जी म्यूचुअल फंड सुना है ना, म्यूचुअल फंड? जी। ये बजाज कंपनीज का म्यूचुअल फंड है, बजाज होल्डिंग मैंने। हाँ मुझे पता है। हाँ, यस। क्योंकि बजाज यानी इसमें सब बजाज की कंपनीज ही होंगी, बजाज होल्डिंग जी, में। वो उसका होल्डिंग कंपनी है, सभी कंपनी होगा, हाँ, लेकिन उसकी जो कैश फ्लो है ना 1500 करोड़ 1600 करोड़ तक पहुंच गई है उसकी सालाना प्रॉफिट। 90,000 की मार्केट कैप है। वो तो और डिविडेंड उनको जो 15-16। मिलेगा उसमें डिविडेंड मिलेगा, वही प्रॉफिट है ना। और प्लस जी अप्रिसिएशन हुआ प्राइस में जी। कंपनीज का, हाँ, अभी उसके अभी अलावा क्या तो है कुछ कि होगा नहीं। नहीं, डोंट डिस्कस। जी। होल्डिंग कंपनी लेने का नहीं, बस अच्छा, पीरियड। थैंक यू। ठीक है, थैंक बाय यू। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल्स, ठीक है, और ज्यादातर इंडस्ट्रियल लो, बहुत पैसा बनेगा आपका। ठीक है। तो कौन सा शेयर सर इंडस्ट्रीज में अच्छा रहेगा? और पैसा दो तो बताओ, ऐसे फुकट में नहीं बताएंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, नहीं कांटेक्ट करता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप समद भाई को डीएम मारो ना, वो जी, बता देंगे। कोई बात नहीं सर, हम्म, थैंक यू। या। अभिषेक अग्निहोत्री, अनम्यूट कीजिए सर। चलो गए वो। अश्वनी जी, अश्वनी जी अनम्यूट कीजिए सर। क्यों आते हैं यार? एस कुमार। हेलो। बोलिए सर, एस कुमार। हाँ सर, मेरा जो लास्ट सवाल था कि वो जो सेटलमेंट होता है ना इंडियन मार्केट में, तो दूसरा बाकी मार्केट में क्यों नहीं होता है? हाँ, क्या? जो सेटलमेंट होता है, जैसे कि इंडियन मार्केट में जो 15 मिनट। सर 3:30 से 4 बजे तक मार्केट खुला रहता है, जो आफ्टर आवर्स, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो बोलते अमेरिका में नहीं है, तो हमारे यहाँ क्यों है? ये अमेरिका में भी है। कौन बोला आपको नहीं है? सर मैं जो बोल रहा हूँ कि जो मतलब 3:15 से 3:30 तक जो होता है सेटलमेंट, अगर स्पॉट जहाँ पे भी हो, तो एवरेज प्राइस में सेटलमेंट करते हैं, राइट? लेकिन वो अगर डाउ जोन देखोगे तो ऐसा उनका मार्केट क्लोज होने के बाद तो ऐसा तो नहीं होता है सेटलमेंट प्राइस। अच्छा, ठीक बात है आपका। यू आर राइट, नहीं होता अपने वहाँ। नहीं सर, यूएस तो में वो क्या आफ्टर मार्केट होता है ना। करे बोल भाई। हेलो।
हाँ सर, नहीं अपने क्या कर सकते हो उसके बारे में? नहीं सर, वही जानना चाहता हूँ तो कि मतलब क्यों हो रहा है इंडियन मार्केट में, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, होता है। अरे हाँ सर सर, आपको क्या लेना देना है, छोड़ना यार। एक फालतू का बात वो सोचेगा ना। नहीं वो सर, लास्ट 15 मिनट कभी कभी वाइल्ड मूवमेंट होता है, उसके बाद सेटलमेंट कर देते हैं, तो वही चीज मतलब वो दूसरा मार्केट में नहीं होता है ना, तो यहाँ अरे पे वो तो बहुत चीटिंग बराबर है। है, तेरे को खेलने का एक खेल, वरना मत खेल, दूसरे बाजार में खेल। अरे मैं क्या बोलता हूँ, ये जो ये इतने बड़े बड़े आज आज सवाल है ना, अपने हाथ में कुछ नहीं है भाई। हाँ क्यों, सर, कब, कहाँ, वो सब अवॉइड करना। तेरे को एक काम है बस, क्या लेने का और क्या बेचने का। ये सब बातों से ये क्या होएगा तेरा? हाँ सर, वो तो सही है, लेकिन दिन भर पे 20 मिनट 20 पॉइंट भी नहीं जाता है, लेकिन लास्ट 15 मिनट 100 पॉइंट भी चला जाता है। तो वही। यूएस में ओके सर। सेटलमेंट बाद में होता है। शरद जी, यू कैन हियर मी? समझ जी, आप बोल भाई। Yeah, I can hear you, Chirag, but I think Saraj sir is not able to hear you. You can relog in again, as I yeah, did. yeah. I'll just quickly to answer him. The US में वो जो सेटलमेंट होता है वो आफ्टर मार्केट होता है। ओके सर। there is a post session trading जिसमें ऑप्शंस वगैरह सेटल होते हैं उसमें, मतलब। ओके सर, थैंक यू सर। Wednesday. दिल तो बच्चा है। हाँ सर, बोलो भाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा 40,000 पर मंथ प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट का, तो क्या मैं एसआईपी करूं या फिर शेयर्स में एसआईपी करूं? मतलब कोई अच्छा शेयर है जिसके मतलब मुझे XIRR का तकरीबन 30% के आसपास या 20% के आसपास मिले, क्योंकि कोई म्यूचुअल फंड में मेरा लास्ट 1 साल का रिटर्न 46% तक बना है। ऑब्वियसली मार्केट में भी वैल्यू है, लेकिन फिर भी जो जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नया इन्वेस्टर हूँ थोड़ा। सर आपने होलिस्टिक क्वेश्चन पूछा है, डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। क्या बोलूं मैं आपको? मैं आपको कितने टाइम के लिए चाहिए? 15 साल का आउटलुक है। नहीं, वो 15 साल आप बोलते हो, ठीक है। आप स्टॉक में करोगे, 5% एक दिन में निकल जाएगा आपका, वो 1.5 महीने का हो जाएगा आउटलुक। सर मैं IOB 182 पे बाय किया था, वो 2 रुपये के 9 रुपये पे आ गया था। 15 साल से मैं IOB होल्ड कर रहा हूँ, मैं बेचा नहीं। बोल रहा हूँ मतलब मेरा अरे सर, आईओबी गवर्नमेंट का कंपनी है, ठीक है, वो बंद नहीं होगा। बट आपके 10 शेयर में से अगर 8 शेयर भी कोई भी लिमिटेड कंपनीज के, अदर देन बैंक्स, अदर देन गवर्नमेंट PSUs, तो आप क्या करोगे उसमें? आप समझाओ मेरे को। अगर वो शेयर फॉर एग्जांपल सुजलोन आज के दिन में आपने लिया 40 रुपए में और वो 4 रुपए हो गया, तो इज देयर एनी गारंटी कि वो कंपनी वापस 40 रुपए होगा? डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट सर। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। रिस्क एपेटाइट आप DM कीजिए, वी कैन डिस्कस ऑन 1-to-1 बेसिस सर। आप DM कीजिए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, विशाल बदानी। विशाल भाई बोलिए, अनम्यूट कीजिए। सॉरी, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट अभी लेने जैसा है कि नहीं है? हाँ जी सर। वेस्टलाइफ डेवलपमेंट अभी लेने जैसा है कि नहीं है? नहीं, यू हैव वेस्टलाइफ राइट नाउ विथ यू इन योर पोर्टफोलियो, और फ्रेश बाई करना है? नहीं, फ्रेश बाय करना है।
फ्रेश बाय यू कैन डू सिप सर, बल्क में लेना अभी इस मार्केट में इट्स नॉट एडवाइजेबल वेस्ट लाइफ, क्योंकि ये मार्केट में काफी गिरा हुआ है एंड आई डोंट नो। अरे सर देयर इज सम न्यूज कोई हुआ होगा, उसकी वजह से कुछ न्यूज आया होगा, उसकी वजह से वो गिरा है, बट रिजल्ट्स वेर ओके ओके, इसलिए थोड़ा बहुत वहां पर प्रेशर है, बट यू कैन प्ले ऑन सिप बेसिस। आप 1000-2000 शेयर लेके यू कैन नॉट। Okay, but can we stick to this script for another 5-10 years if I keep buying SIP में? कौन सा? Same Westlight development. आज के दिन में 8-10 लाख का लेना है आपको? नहीं नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ सिप सिप करूँ, हाँ तो मैं कंटिन्यूसली मैं सिप करते रहूँ हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ यस 5-10 साल के लिए, इज दैट ओके या फॉर दिस कंपनी? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। छे कोई सर? नहीं है तो एंड करें। यस सर, गुड नाइट। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। सी यू सर, थैंक यू सो Bye. मच।